अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी चैप्टर 5 फिनिश किया और चैप्टर 6 का कंटिन्यूएशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 seems to be थोड़ा लंबा चैप्टर लग रहा है, so I will try to finish that by 3. अभी 1:15 PM हुए हैं. I will see if we can finish it by 3. If not, then we will have to continue the chapter 6 as well. Current pages on the PDF is 459 to 530. So चले हम चलते हैं PDF की तरफ. So chapter 6 के अंदर we will cover the network fundamentals or the networking fundamentals. 2.1 के अंदर हम cover करेंगे fiber cables, things like that, twisted pair. RJ11 को हम शायद हम कवर नहीं करेंगे. RJ45 and the wiring standards को कवर करेंगे इंशाल्लाह. Coaxial cable, types of fiber, single mode versus multi mode, speed, twisted pair, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. I will give you more information on that. Speed and transmission limitations, splitters, coaxial. Okay. So let's start with the 2.1. Okay. So when we look around most homes or offices today, right, it's hard to imagine a world without networks. So nearly every place in business has some sort of network these days. Wireless home networks have exploded obviously in popularity over the few years. We have so many tablets, laptops, IoT devices, smart home devices, things like that. So home these days is filled with network devices. It didn't used to be like that before. Before it used to be one system per day, per home. Cell phone did not really exist back then, so cell phone didn't have any IPs or anything like that. But it is likely that we are doing it with the ubiquitous internet-enabled smartphones in our pockets and purses. We take for granted a lot of what we have gained in technology over the past few years, much less the past several decades. 25 years ago, if you wanted to send a memo to everyone in your company, you had to use a photocopier or inter-office mail. Physical mail हम लोग send करते थे 25 years ago. Delivery to a remote office could take days, you know. Today, one mistaken click of the reply all button can result in instantaneous embarrassment. एक email आप भेजो गलती से किसी को भेज दिया तो पूरी कंपनी के अंदर चला जाता है, and then you know you can get an embarrassment. So email is an example for one form of communication, obviously, that became available with the introduction and growth of networks. So this chapter will focus on the basic concept of how the network works, including the way it sends information, the hardware what's being used here, and the common types of network you might encounter. It used to be that in order to be a PC technician, you needed to focus only on one individual, a large computer at a time. पहले हर एक ही computer के अंदर आप concentrate करते थे and then you would get a job. अब ऐसा नहीं है. Now you need to know a lot of different things in order to land one job in IT, help desk or system admin. In today's environment, though, you will in all likelihood need to understand combination of hardware, software, and network infrastructure in order to be successful. So in this material, if the material in this chapter interests you, you might consider studying ये वाले जो हैं CompTIA network exam you can do, which is an extra exam on top of that. If you are willing to do even further with network, and then after that there's another one called security. So understanding networking principles. Standalone personal computers, first introduced in the 1970s, gave users the ability to create documents, spreadsheets, and other types of data and save them for future use. For the small business user or home computer enthusiast, that was great. For large companies, however, it was not enough. Large companies had greater needs to share information between offices and sometimes over great distances. So, पहले basically कंप्यूटर जब आया था 1970 के अंदर तो documents and spreadsheets आप save कर सकते थे for future use. But जो big companies थी, they couldn't really use that because उनको तो वो
जो भी इंफॉर्मेशन है, they needed to pass that through different offices with great distance. So जो standalone computer थे were not efficient enough for these reasons. The main was the small hard drive capacity was insufficient. Hard drive की capacity कम थी. To print, each computer required a printer attached locally. Print करने के लिए एक एक computer के साथ printer attach होना करना पड़ता था, which cost a lot of money. Sharing documents was cumbersome. People grew tired of having to save floppy disks. वो floppy के अंदर ले जाके उसमें सेव करके फिर किसी को दो, फिर उसमें डाले और वो डॉक्यूमेंट निकाले. Back then email नहीं था, खाली इंटर ऑफिस मेल था. वो बंदा आता है आपके पास, मेल लेके जाएगा और किसी और को ड्रॉप कर देगा. That's how it used to work. So to address these problems, network was born. A network links two or more computers together to communicate and share resources. Their success was a revelation to the computer industry as well as to businesses. Now departments could be linked internally to offer better performance and increase efficiency. Network is simply two computers connected. And technically speaking, internet is the same thing. Internet is a network. आज हम जब बैठ के मूवीज देखते हैं, हम घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी या यूट्यूब के ऊपर मूवी देखी, हम कर क्या रहे हैं? We're not doing anything. The only thing we're doing, हमारे कंप्यूटर से यूट्यूब के कंप्यूटर पे कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्ट जाते हैं. ये समंदर के अंदर इन्होंने फाइबर्स के वायर्स बिछाए हैं. बहुत पहले फाइबर तो होम रेजिडेंशियल के अंदर अभी आए हैं, पर ये फाइबर तो बहुत पुराने हैं, काफी टाइम से. अभी आई थिंक उसका डेट भी आएगी इधर. बट वो समंदर के अंदर दे हैव लेड डाउन दी फाइबर केबल्स. whole world, yeah, most part of the world. I don't know parts of Africa if they have, but most part of the world, yeah, the fiber cables are already run and they constantly run new ones too, you know. तो उसमें है कुछ भी नहीं, उसमें बेसिकली कंप्यूटर्स आर कनेक्टिंग. एंड इसके मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, होपफुली आपको सबको यहाँ पे समझ आएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज नेटवर्क, यू नो, और व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेट. इंटरनेट है क्या? तो अभी हम करेंगे ट्रेस राउट. ओके, बेसिकली मैं अभी कर रहा हूँ ट्रेस राउट. इसको बोलते हैं ट्रेस राउट टू गूगल. मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं जब google.com डालता हूँ अपने वेब ब्राउजर में, तो मैं कौन कौन से सर्वर के थ्रू जाके ये गूगल तक पहुँचता हूँ, उसका पूरा राउट मुझे ये बताएगा. मेरे पास आ गया. हाँ, तो ओके, सो गूगल राउट बताएगा. अभी मैं देखिए एंटर करूँगा तो आप ये देखिए जो हॉप्स है ना, व्हाट यू सी हियर, मैक्सिमम 30 हॉप्स. ये 30 हॉप्स के अंदर ही गूगल तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मुझे इसके हॉप्स बढ़ाने पड़ेंगे. ठीक है, तो चले. सबसे पहले ये जो है ऊपर, सेलेक्ट कीजिए, एक सेकेंड. ऑप्शन नहीं दिया, बट एनीवे चलें. ये जो 172.217.14.238 जो दिख रही है ऊपर, ये google.com की वन ऑफ द google.com की आईपी है. मेरे पास तो बहुत है, हजारों है, उनमें से ये एक आईपी है. अब ये अपना राउटर लगा हुआ है. मैंने उसको ट्रेस राउट किया, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट गई हमारे राउटर पे जो कि गेटवे है. गेटवे से गई हमारी वन ऑफ द आईपी, ठीक है ना, उसमें गई. फिर हमारी दूसरी आईपी पे गई. ये सब हमारी आईपी. फिर ये हमारे इंटरनेट की आईपी. यह कॉमकास्ट आपको दिख रहा है, हम कॉमकास्ट तक पहुंच गए हैं जो कि प्लेनफील्ड न्यू जर्सी के अंदर लोकेटेड है. दूसरा कॉमकास्ट का सर्वर, ये सारे हम उनके सर्वर नहीं, उनके स्विचेस और उनके जो नोड्स है ना, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. जितनी भी आपको यहाँ पे आईपी दिख रही है ना, ये कुछ भी नहीं है. दिस इज ओनली ए नेटवर्क डिवाइस. इट्स ए स्विच और ए फायरवॉल, जो भी उनका प्लेस किया हुआ होगा. ये कनेक्शन
उस स्विच और फायरवॉल को हॉप करके गूगल तक पहुंचेगा। आप देखेंगे इवेंचुअली ये जो आईपी है ना 172.217.14.238 वहां वो फाइनल आईपी आपको दिखेगी। तो उसमें आपको पता चलेगा ये पूरा पैथ है। मुझे यहाँ से google.com पे जाने के लिए मुझे ये सारे सर्वर के थ्रू जाना पड़ता है। देखिए मैं पहुंच गया। ठीक है, अब ये कितनी सारी आईपीज आई और ये इतनी सारी जो आईपी बीच में आई सारी गूगल की नहीं है। ये एक्चुअली देखिए मैं कॉमकास्ट के नेटवर्क के थ्रू गया। अब ये आईपी मुझे नहीं पता। आई कैन डू इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट लेटर ऑन इफ आई वांट, बट नॉट गोना डू दैट राइट नाउ। बट फाइनली मैं ये गूगल की आईपी तक पहुंच गया हूँ। ये उनका सर्वर SEA, आई एम असूमिंग दे आर इन सियाटल। इस सियाटल का उनका कोई स्विच होगा या फायरवॉल होगा, गेटवे होगा मोस्ट लाइकली। ये राउट के थ्रू में पहुंच गया। तो ये बेसिकली नेटवर्क जो है ना, इट्स ओनली ए कनेक्टेड डिवाइसेस। ये सारे डिवाइसेस पूरी दुनिया में कनेक्टेड है। दैट इज द रीजन व्हाई हैकिंग इज समटाइम्स सो इजी, बिकॉज आप सारे नेटवर्क से कनेक्टेड हो, पूरी दुनिया में कनेक्टेड हो। अब ये ब्लॉक करता है फायरवॉल। आप फायरवॉल डालोगे, देन यू कैन ब्लॉक इट एंड यू कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। दिस जो पैथ है ना, दैट्स द नेटवर्क। ठीक है ना? तो बस ये समझे आप। गो बैक टू अवर PDF। ये जो पाथ हमने लिया, ये पाथ कनेक्टेड है डिफरेंट स्विचेस एंड सर्वर्स से। ठीक है, तो चले हम गो बैक टू द PDF। So you have probably heard that the term networking in a business context, where people come together and exchange names for future contact and access more resources. The same is true with the computer network. जैसे मैंने अभी बताया, the computer network allows computers to link to each other's resources. For example, in a network, every computer does not need a printer connected locally in order to print. Instead, you can connect a printer to one computer, or you can connect it directly to the network. जो मैंने अभी पहले आपको पिक्चर में बताया, वही बता रहे हैं। या तो आप प्रिंटर को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करें और उस कंप्यूटर को सब नेटवर्क में शेयर करें, या तो फिर आप एक प्रिंटर को डायरेक्टली नेटवर्क से लगा दें और उस नेटवर्क के थ्रू प्रिंट करें। ये भी नेटवर्क है। ठीक है। Now, understanding networking fundamentals. In many cases, networking today has become a relatively simple plug-and-play process. Wireless network cards can automatically detect and join networks, and then you are seconds away from surfing the web or sending email. Of course, not all networks that are that simple. Getting your network running may require a lot of configuration, and one messed up setting can cause the whole thing to fail. Home network usually are very easy to set up, especially यहाँ US में। आप plug and play करें, राउटर लगाएं, जो भी कंपनी की तरफ डिवाइस आता है ऑन करें और टर्न ऑन हो जाता है। पासवर्ड पीछे लिखा हुआ होता है, वाईफाई का पासवर्ड आपने डाला एंड यू आर गुड टू गो। बहुत सिंपल। बट वो सिक्योर नहीं होता है, उसमें थोड़ी इश्यूज होती हैं, बट द पीपल हु डोंट नो, दैट्स हाउ दे यूज इट। ठीक है ना, प्लग एंड प्ले। So just as there is a lot of information you should know about how to configure your network, there is a lot of background information you should understand. काफी इंफॉर्मेशन है इसके पीछे which you need to understand how to set up your network properly. उस नेटवर्क के अंदर 3-4 अलग-अलग चीजें आती हैं: LAN, WAN, PAN and MAN. LAN stands for local area network, which was introduced to connect computers in a single office or building. LAN जो है वो लोकल नेटवर्क है, आपकी किसी भी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क। जो इंटरनल नेटवर्क होता है ना, जो आउटसाइड की दुनिया को टच नहीं करता है, इंटरनल नेटवर्क है, वो LAN होता है। इट्स आल्सो कॉल्ड इंट्रानेट। जैसे एक तो होता है इंटरनेट, इंट्रानेट, INTRANET, इंट्रानेट, वो शायद आगे जाके आएगा। Wide area network, which is called WAN, expanded the LANs to include network outside the local environment and also to distribute resources across great distances. WAN is an internet, ये इंट्रानेट नहीं है। हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट में कर दूं आप लोगों को इधर। एक है इंट्रानेट, ये है लोकल, ठीक है। दूसरा है इंटरनेट,
This is actually wide, but you can call it WAN. This is actually LAN. ठीक है ना? Intranet is only internal network to the home या office. WAN, which is the internet, that's the internet throughout the entire, basically पूरी दुनिया के जितने भी network connected हैं ये WAN उसको बोलते हैं. ठीक है? So back to our PDF. So WAN expanded the LANs to include network outside the local environment and also to distribute resources across great distances. Generally, it's safe to think of a WAN as a multiple dispersed LAN connected together. See, जो मैंने अभी आपको ट्रैफिक का जो राउट बताया था ना, जो हॉप मैं जो बताया था, मैं have to show that again. ये जो राउट मैंने बताया था ना, ये WAN है. ये वैन है. क्यों वैन है? क्योंकि अगर आप ये देखें, ये लोकल हो गया 10.0.20.31. ठीक है? एवरीथिंग एल्स यू सी, ये सारी पब्लिक आईपी है. जब हम आईपी को देखेंगे ना तो आप थोड़ा नोटिस कर लेंगे क्योंकि 3 क्लास की आईपी आती है, क्लास ए, बी एंड सी, विच इज द इंटरनल लोकल आईपीज. एवरीथिंग एल्स इज ऑल एक्सटर्नल आईपीज. दीज आप जो देख रहे हैं ये सारी एक्सटर्नल आईपी, स्टार्टिंग विद द 50 एंड एवरीथिंग डाउन बिलो, सारी एक्सटर्नल आईपीज है. एक्सटर्नल आईपीज भी मैंने बताया ये स्विचेस है. तो बेसिकली वैन क्या है? जब हम अपने लोकल नेटवर्क में से ये दूसरी जगह पे सब दूसरी स्विचेस में कनेक्ट होते हैं, ये वैन है. दैट्स ऑल इट इज. लोकल नेटवर्क में अभी देखें, अगर मुझे जाना हो, मैं अगर ट्रेस अपने लोकल नेटवर्क में ही करता हूं, मैं अपने लोकल नेटवर्क में अगर ट्रेस आउट करता हूं, it should take only one hop. Unless I have some switches set up here. Let's see. देखा, one hop है, single hop, which means कि इस कंप्यूटर से ये डायरेक्टली ये राउटर के ऊपर चला गया सिंगल हॉप के अंदर. बट यहाँ पे वो केस नहीं था. यहाँ पे मेरे राउटर में से उसको निकलना पड़ा, फिर ये दूसरी आईपी में जाना पड़ा, उसने उसको यहाँ पे बाउंस किया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया. कितने सारे हॉप्स उसने लिए, जंप कर करके दूसरी स्विचेस पे, फिर ये क्या था, गूगल तक पहुंच गया वो. सो दिस इज कॉल्ड वैन. ठीक है? Going back to our PDF. अच्छा, उसके अंदर, so generally it's safe to think of a WAN as multiple dispersed LAN connected together. Today, LANs exist in many homes. सारे होम में होता है वो. Nearly all businesses as well. WANs are becoming more common as businesses become more mobile and as more of them span greater distances. Historically, only larger corporations used WAN, but many smaller companies with remote locations now use them as well. WAN obviously पहले इतना कॉमन नहीं था, पर अब बड़ी कंपनीज जो है उनकी रिमोट लोकेशंस होती है, so वो WAN यूज करते हैं. रिमोट लोकेशन means several different things, but remote locations like someone on wheels, meaning गाड़ी के अंदर कोई जाता हो, उनको इंटरनेट चाहिए, so they connect to the hotspot. That hotspot has a public internet IP. That's WAN right there. ठीक है? Now having 2 types of network categories just didn't feel like enough, so the industry introduced 2 more terms: the personal area network and the metropolitan area network. The personal area network, PAN, is a very small scale network designed around one person within a very limited boundary area. PAN is like a personal area network. अभी मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप है, या मैं 2 लैपटॉप को खाली मर्ज करना चाहूँ, बहुत ही स्मॉल एरिया, बहुत ही स्मॉल फॉर अ सिंगल यूजर, फाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आई कैन क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. ये ज्यादा यूज नहीं होता है बिकॉज एवरीथिंग इज स्टिल यूज्ड ओवर लैन. सो the term generally refers to the network that uses Bluetooth technology. Okay. ये Bluetooth से भी जितनी शेयरिंग होती है ना, so they're calling that one of the way of transferring the data through Bluetooth. You can do it. RFID, you can do that as well. On a larger scale is the metropolitan area network, MAN, which is bigger than LAN but not quite as big as WAN. It is important to understand these concepts as a service professional. Okay, मैं बताता हूँ. MAN जो है ना
these are all things are LAN PAN जो है वो LAN से छोटा है और MAN जो है वो LAN से थोड़ा सा बड़ा है पर WAN से छोटा है. MAN is basically जो बिग कंपनीज होती है ना उसकी जो काफी रिमोट लोकेशंस कनेक्टेड होती है VPN टनल के थ्रू. इवन दो लेट्स से एक लोकेशन आपकी Amazon की है न्यू जर्सी में, दूसरी है सियाटल में. न्यू जर्सी से सियाटल जो इसका जो कनेक्शन जाएगा Amazon का वो जाएगा पब्लिक आईपी के ऊपर पर वो कनेक्शन होगा इंटरनल LAN कनेक्शन. दैट इज कॉल्ड मैन बिकॉज that access is only by Amazon. No one else has that access. Yeah. Now LANs. In the 1970s brought us the mini computer, which was a smaller version of the large mainframe. Whereas the mainframe used centralized processing, all programs ran on the same computer. The mini computer used distributed processing to access programs across other computers. Mainframe जो है basically एक बड़ा computer था, सारी processing एक central processing unit में होती थी. Mini computer जब 1970s में आया तब काफी CPU अलग हो गया, मेमोरी अलग हो गई, सबकी जॉब अलग अलग हो गई. तो then they were able to distribute the processing jobs. ठीक है ना? And this is the difference right here. The one on the left is the mainframe. The one on the right is the, well, not mini anymore, but it used to be mini computer or data entry or desktop computer. ठीक है? So जैसे पिक्चर में बताया, distributed processing allows the user at one computer to use a program on another computer as a backend to process and store information. The user's computer is the front end where the data entry and minor processing functions are performed. This arrangement allowed programs to be distributed across computers rather than centralized. अब ये वही कॉन्सेप्ट आ गया थिन क्लाइंट जैसा, है ना? थिन क्लाइंट जैसा ही कॉन्सेप्ट है. ये जो कंप्यूटर है छोटा वाला, ये सारा जो डेटा है ये मेन फ्रेम में से निकालता है और यहाँ पे आगे यहाँ पे प्रोसेस करता है. This was also the first time network cables rather than phone lines were used to connect computers. यहाँ पे first time network cable use हुई थी इन दो computers को connect करने में. Now by 1980s, offices were beginning to buy PCs in large numbers. Portables were also introduced, allowing computing to become mobile. Neither PCs nor portable, however, were efficient in sharing information. As timeline and security became more important, floppy disks were just not cutting it. Floppy disk घड़ी वो बार वो floppy disk के अंदर डेटा डाल के एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो जाता था, टाइम कंज्यूमिंग था और floppy disk जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव करती भी नहीं थी इसके अंदर. तो ऑफिसेज जो है उनको एक दूसरा अच्छा बेटर सोल्यूशन चाहिए था, इसीलिए LAN इंट्रोड्यूस हुआ. And this led by the introduction of the first type of PC local area network shared by ShareNet by Novell. उन्होंने सबसे पहले ये introduce किया, which has both hardware and software components. LANs simply link computers in order to share resources within a closed environment. The first simple LANs were constructed a lot like the LAN in Figure 6.2. बस simple है ये, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सके. वो एक कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव का डेटा पड़ा हुआ आप दूसरे कंप्यूटर में जाके देख सकते हैं. सो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन ऐसे दी. After the introduction of ShareNet, more LANs sprouted. The earliest LANs could not cover very large distance. Most of them could only stretch across a single floor or of the office or could support no more than 30 computers. Furthermore, they were still very rudimentary and only a few software programs supported them. The first software programs that ran on a LAN were not capable of being used by more than one user at a time. The constraint was known as file locking. Nowadays, multiple users can often concurrently access file program. Okay. पहले बेसिकली क्या था कि limitations बहुत थी obviously और जो about 30 computers एक LAN के ऊपर usually चलते थे by floor और ज़्यादा डिस्टेंस भी दूर नहीं जा सकते थे उसके अंदर. और उसके अंदर कभी भी जब काम करते थे फाइल के अंदर तो सिंगल यूजर could do work on file. एंड ये विंडोज एक्चुअली ये तब तक चला था, ये विंडोज 2000 में भी था ये प्रॉब्लम, एंड आई थिंक एक्सपी में भी था. But that had nothing to do with the operating system. It was the network limitations and the software limitation. उसके अंदर एक टाइम के अंदर एक ही बंदा फाइल को एडिट कर सकता था.
जैसे अभी गूगल के अंदर आप जाएं, गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म में आप शेयर करें, मल्टीपल पीपल कैन एडिट द फाइल्स एट द सेम टाइम. अब चेंज हो गया. तो पहले दीज वर द रिस्ट्रिक्शंस. The same goes for the database also. WANs, by the late 1980s, networks were expanding to cover large geographical areas and were supporting thousands of users. WAN, first implemented with mainframes and massive government expenses, started attracting PC users as networks went to this new level. Employees of businesses with offices across the country communicated as if they were only desks apart. Soon the whole world saw it. सबसे पहले जब ये WAN 1980s में आया तो government ने basically spent किए initial money and they invested in mainframes, massive mainframes उन्होंने डाले अलग-अलग जगह पे जो ऐसा एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते रहे, which slowly created a WAN capabilities. जब सारी जगह चेंज होने लगे, लोगों ने they started buying computers also, they started connecting the computer. As soon as you connect, they start connecting to other devices. आहिस्ता आहिस्ता वो WAN का एरिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया. And then whereas LAN are limited to single buildings, WANs can span buildings, state, countries and even continentals, है ना. WAN पूरी दुनिया में है बेसिकली. ये आपको एग्जांपल ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी दुनिया बनाई हुई है. And then as you can see, ये कंप्यूटर हर जगह है. ये पूरा WAN नेटवर्क है. ठीक है. In networks of today and tomorrow are no longer limited by the inability of LANs to cover distance and handle mobility. WANs play an important role in the future development of corporate networks worldwide. अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि भाई इन्होंने ये मुमकिन कैसे किया, ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कनेक्शन जा कैसे रहा है, वो उन्होंने नहीं बताया है. बट तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. जैसे एक कॉन्टिनेंट में से दूसरे कॉन्टिनेंट समंदर के थ्रू, समंदर के अंदर इन्होंने बड़े बड़े फाइबर ऑप्टिक्स के केबल्स डाले हुए हैं. वो फाइबर ऑप्टिक्स के केबल जैसे वराइजन है फॉर एग्जांपल, वराइजन ने डाले यहाँ से लेके एम्स्टरडैम तक. तभी मैंने आपको बताया था कि एम्स्टरडैम के अंदर आप VPN करेंगे तो वो फास्ट चलेगा. ठीक है. एम्स्टरडैम, यहाँ से एम्स्टरडैम के अंदर फाइबर के चैनल्स बहुत जाते हैं. तो जिस कंपनी ने फाइबर डाले, दोनों कंट्रीज के दोनों एंड में उनके डिवाइसेस लगे होते हैं. फिर उनके डिवाइसेस आगे जाके दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फिर वो डिवाइस दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फिर वो डिवाइस दूसरे पर्सनल कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं. तो ये ऐसे ये पूरा नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, पूरी दुनिया में बिछा हुआ है. ठीक है. PANs, इसको हम क्विकली करते हैं because this is not as much concerning in areas other than Bluetooth, but the term PAN is mostly commonly associated with Bluetooth networks. In 1998, a consortium of companies formed the Bluetooth Special Interest Group (SIG) and formally adopted the name Bluetooth for its technology. The name comes from the 10th century Danish king named Harald Blatten, known as Harald Bluetooth in English. One can only imagine how he got that name. So anyway, so ये कोई Harald Blatten करके है, उसका नाम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो Harald Bluetooth कहलाता था. उसके नाम के बेस के ऊपर इन्होंने ये Bluetooth का रखा हुआ है. Current membership in the Bluetooth SIG include Microsoft. Bluetooth की जो ये SIG का इन्होंने जो ग्रुप बनाया था, it's called Special Interest Group (SIG). हम कभी-कभी नहीं बोलते हैं कि only limited number of people in the world are running the entire world. This could be one of those things. SIG. तो SIG के जो current member हैं, as you can see, is Microsoft, Intel, Apple, IBM, Toshiba, and several cell phone companies manufacturer. अभी आगे जाके I think Google भी आ गया होगा, but there are certain companies who are part of this technology. The technical specification IEEE 802.15.1, which relates to Bluetooth version 1.1. ठीक है. ये आपको अमूमन ड्राइवर्स के अंदर भी दिखेगा ये वाला नंबर. जैसे याद रखिएगा 802.15.1. The first Bluetooth device on the market was an Ericsson headset and cell phone adapter, which arrived on the scene in 2000. ये वाला एक छोटा सा पीस आया था
ये ब्लूटूथ का था, अब तो ऐसे वो भी आ गए ना hotspots ऐसे. But while mobile phones and accessories are still the most common type of Bluetooth devices, you will find many more, including wireless keyboards आ गए हैं, mouse हैं, printers भी Bluetooth के अंदर काम करते हैं. A lot of devices actually still work under Bluetooth, but Bluetooth की technology अब थोड़ी सी advance हो गई है, where security उन्होंने up की है उसके अंदर, the way how it communicates. So so let's move on. One of the defining features of Bluetooth wireless PAN, actually that's what it means. W means wireless or Wi-Fi. PAN is its temporary nature. With traditional Wi-Fi, you need a central communication point such as wireless router or access point to connect more than two devices together. This is referred to as an infrastructure. Bluetooth networks are formed on an ad hoc basis, meaning that whenever two Bluetooth devices get close enough to each other, they can communicate directly with each other. वाईफाई और ब्लूटूथ में फ़र्क क्या है कि वाईफाई जो है वो बेसिकली उसके लिए आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें चाहिए. वाईफाई वायरलेस राउटर, कोई एक्सेस पॉइंट और डिवाइस जो हो उसके अंदर वाईफाई का कार्ड लगा हुआ हो, सेल फोन, ताकि वो राउटर से कम्युनिकेट करे और वाईफाई कनेक्शन क्रिएट करे. ब्लूटूथ जो है वो ऐसे नहीं, वो एड हॉक बेसिस पे काम करती है. उसका मतलब ये हुआ कि जब वो नज़दीक आती है विद इन सर्टेन डिस्टेंस, देन यू कैन कनेक्ट. वो ज़्यादा उसकी रेंज इतनी नहीं है. No central communication point is required. कोई central communication की जरूरत नहीं है. दो devices can directly connect with each other. This dynamically created network is called Piconet. A Bluetooth-enabled device can communicate with up to 7 other devices in one Piconet. 2 or more Piconets can be linked together in a scatternet. In a scatternet, one or more devices would serve as a bridge between the Piconets. 7 devices हम कर सकते हैं. If you want a centrally communicated device, then you can create a scatternet. वो scatternet will connect to each one Piconet. Piconet को आप ऐसे समझ लेना कि अलग-अलग computer devices basically, and this scatternet is pretty much like a router, you know. For those networks that are larger than LAN but confined to a relatively small geographical area, there is the term metropolitan area network. MAN is generally defined as a network that spans a city or large campus. बताया ना different location or campus location those की. For example, if a city decides to install wireless hotspot in various places, then network could be considered MAN. One of the question इसको हम पास करते हैं because वो example दे रहे हैं. तो basically दो offices हो, अलग-अलग location में हो, कभी building एक साथ ना हो, अलग-अलग cities, अलग-अलग states या इस area में हो. मैं तो काफी दूर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक ही सिटी के अंदर पर अलग अलग बिल्डिंग हो, वो भी मैन कहलाता है. ठीक है ना. We will have to, हमें थोड़ा सा ना स्किप करना पड़ेगा because ये चैप्टर थोड़ा लंबा है. So I'm going to only cover the one which is actually needed in real life, life scenarios, right? So technically speaking, primary network components, 2 or more computers connected together is a constitution of network. But networks are really that simple. चलिए इसको हम क्रॉस करेंगे, इसको जाने दें. This is HSPs. Servers come in many shapes and sizes. They are a core component of the network, providing link. Server is merely the same thing as a desktop, and server creates a network, which could be in a LAN or a WAN. हमने जो अभी जो राउट देखा था, हमने जो पूरा राउट देखा था ना, वो उनकी स्विचेस थी. उसके पीछे सर्वर भी जो रन कर रहे होंगे, that could be considered a WAN connection जो हमने ऊपर देखा था. Servers offer networks the capability of centralizing the control of resources and security, thereby reducing administrative difficulties. They can be used to distribute processes for balancing the load on computer and can increase the speed of performance. Okay, सही है. तो सर्वर्स जो है वो भी नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है. जैसे प्रिंट सर्वर में बताया था, प्रिंट सर्वर आप सर्वर में डालें, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक प्रिंटर आप नेट सर्वर से इंस्टॉल कर दें और सारे कंप्यूटर सर्वर को कनेक्ट कर दें, तो ये आपने लैन नेटवर्क बना दिया है. दिस इज कॉल्ड लैन. ठीक है ना. डेडिकेटेड सर्वर is assigned to provide specific application or services for the network and nothing else. Because the dedicated server specializes in only few tasks, it requires fewer resources. Dedicated server के दो मतलब है यहाँ पे एक्चुअली. एक है डेडिकेटेड सर्वर, नॉन डेडिकेटेड सर्वर. मैं इसमें I'm not gonna go through this. I'll tell you. डेडिकेटेड सर्वर जो है बेसिकली वो सर्वर
जिसमें कुछ खास चीजें आपको चलानी हो वही चले और कुछ ना चले, दैट्स इट। उसके अंदर बिकॉज ऑफ दैट वो स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए, आपको ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं है। जो रिसोर्स उस काम को चलाने के लिए चाहिए वही आप उस सर्वर में डालो। नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स जो है दे आर असाइन्ड टू प्रोवाइड वन और मोर नेटवर्क सर्विसेज एंड लोकल एक्सेसेस। A non-dedicated server is expected to be slightly more flexible in its day-to-day use than a dedicated server. Non-dedicated servers can be used to direct network traffic and perform administrative actions, but they are also rare. But they also are often used to serve as a front-end or end. अच्छा, non-dedicated server इसके अंदर मैं आपको क्लाउड की टर्म भी आपको बताऊंगा quickly. Non-dedicated server जो है, I mean, they expect it to कोई भी इसके अंदर काम आप डालो वो उसमें आप डाल सकते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्लाउड के अंदर, क्योंकि हम आगे जाके वो भी कवर करेंगे। जब हम क्लाउड के अंदर भी हम है ना हम बाय कर सकते हैं, जैसे अमेजोन की एग्जांपल देता हूँ मैं। अमेजोन में आप डेडिकेटेड सर्वर क्लाउड पे बाय कर सकते हैं और आप नॉन डेडिकेटेड सर्वर भी बाय कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड शेयर्ड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर से उसमें मुराद क्या है क्लाउड के अंदर कि सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज, व्हाटएवर इट इज, इट ओनली बिलोंग्स टू यू। आप रेंट कर रहे हो अमेजोन से, पर उस सर्वर के अंदर अमेजोन किसी और को हिस्सा नहीं देगा। ये डेडिकेटेड सर्वर है। नॉन डेडिकेटेड सर्वर और शेयर्ड सर्वर का मतलब ये है कि ले तो आप अमेजोन से ही रहे हो, पर वो सर्वर की रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी जो भी है, स्टोरेज, वो दूसरे के साथ भी शेयर होगी। तो पर्सन नंबर ए, कंपनी नंबर ए आती है, वो सर्वर शेयर्ड सर्वर यूज कर सकती है। कंपनी नंबर बी आती है, वो भी उसी शेयर्ड सर्विसेज के शेयर्ड सर्वर के ऊपर जाके अपना डेटा सेव कर सकती है। उसमें सिक्योरिटी होती है बीच में, इट्स नॉट लाइक आप किसी का डेटा यूज कर लो, नो, ऐसे नहीं होता है। खाली रिसोर्सेज जो है, तो अभी अगर कंपनी नंबर बी की बहुत रिसोर्सेज चल रही है तो आपकी सर्विसेज स्लो हो जाएगी। ओके, दैट्स द प्रॉब्लम विद शेयर्ड सर्वर्स। वर्क स्टेशन का हमने कवर कर लिया है। वर्क स्टेशन इज द कंप्यूटर जो पर्सनल यूज के लिए होता है, उसके अंदर निक कार्ड लगा हुआ होता है, सीपीयू, मेमोरी सब उसकी अलग होती है। सो यू विल पास दैट। ओके, इसमें लोग बोलते हैं कि वो यू कैन यूजुअली वर्क स्टेशन के अंदर मोर डेटा स्टोर कर सकते हो, बिकॉज वो इंडिविजुअल का डेटा होता है, पूरी कंपनी का डेटा नहीं होता है। सो यस, दैट्स ऑब्वियस वर्क, राइट। रियल वर्क सिनेरियो के अंदर ये पूछेंगे, लेट्स सी, इज दैट अ सर्वर और अ वर्क स्टेशन? This is one of the things that author Quentin Doctor does when teaching novice technicians. In the room, there will be a standard-looking mini tower desktop computer. He points to it and asks, "Is this a server or a workstation?" A lot of technicians will look at it and say, "It's a workstation because it is a desktop computer." The real answer is, it depends. So it all goes back to मैंने जो पहले बताया था, वो जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, आप हाउ आप उसको कंसोलिडेट करके सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज कि मैंने जब पहले मैंने बताया कि आप किसी भी चीज को सर्वर बना सकते हो, लिमिटेशन नहीं है। आप सर्वर के हार्डवेयर को सर्वर बना सकते हो और जो घर का जो कंप्यूटर है डेस्कटॉप, उसको भी सर्वर बना सकते हो। यहाँ तक कि वो जो रास्पबेरी पाई आती है छोटा सा, उसको भी सर्वर बना सकते हो। यस, सर्वर का जो मतलब है ना, इन्होंने जो नाम दिया है सर्वर का मतलब ये है टू सर्व। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, सर्वर आता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो सर्वर, वेटर आता है ना। सर्वर का मतलब समझो वेटर है, ये सर्वर का काम है। वो सबके लिए बेसिकली वेट कर रहा है कि कोई उसको पूछे कि भाई क्या चाहिए, सर्वर उसको देगा निकाल के। ये सर्वर का काम है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो उसके अंदर क्या होता है, सर्वर के अंदर जो है बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर की सर्विसेज चलती होती है, और सर्वर बैठ के सुन रहा होता है, उसके कान खुले हुए होते हैं हमेशा, और सुन रहा होता है। ये मैं इन अ लेमन्स टर्म समझा रहा हूँ कि सर्वर क्या है, ताकि वो बहुत इजीली समझ आ जाए कि
सर्वर बैठ के सुन रहा होता है पूरे टाइम, नेटवर्क अपने नेटवर्क के ऊपर ही बैठ के सुन रहा होता है पूरे टाइम कि किसी को हेल्प चाहिए हो तो मैं हेल्प करूं। तो अगर कंप्यूटर आता है वर्क स्टेशन, बोलता है भाई सर्वर मुझे प्रिंट करना है, तो सर्वर ने सुन लिया तो सर्वर जाएगा प्रिंटर के पास, जल्दी से उसको प्रिंट करके देगा। सर्वर का काम है सर्व करना, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो दैट्स उसके सारे सेक्शन को मैं कंप्रेस करके मैंने आपको बता दिया सर्वर क्या है। अभी नेटवर्क रिसोर्सेज, we now have the server to share the resources and the workstation to use them, ठीक है ना। But what about the resources themselves? The resource as far as the network is concerned is any item that can be used on a network. Resources can include a broad range of items, but following items are among most of them: printers and other peripherals, disk space and all that, application, things like that. So when only a few printers and all of the associated consumables have to be purchased for the entire office, the costs are dramatically lowered. चलिए इसको मैं क्विकली स्किप करता हूँ, मैं बताता हूँ उसमें क्या है। सर्वर हमारा हो गया, वर्क स्टेशन हो गया। सर्वर का काम है सर्व करना, वर्क स्टेशन का काम है यूज करना। इन दोनों के बीच के अंदर जो रिसोर्स आती है, वो रिसोर्स जो हमें यूज करना है वो कहां से आएगी? वर्क स्टेशन जो है वो है कस्टमर हमारा, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कस्टमर बैठा हुआ है, जो कस्टमर जो बैठा हुआ है वो वर्क स्टेशन है, जो वेटर आ रहा है वो सर्वर है। पर खाना भी तो कोई बना रहा है ना, और चलो बना नहीं रहा, जो खाना है चलो खाना खाने को बोलो, वो खाना जो है वो रिसोर्स है, क्योंकि सर्वर जो है वो खाना नहीं बना रहा है, वो सिर्फ लेके आ रहा है और आपको दे रहा है। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। सर्वर जो आता है वो नेटवर्क के ऊपर से, नेटवर्क आप समझ लो कुक, वो नेटवर्क के अंदर से ये खाना निकालता है, प्रिंटर, डिस्क की स्टोरेज, ये नेटवर्क के पास जो जुड़ी हुई होती है सारी चीजें, ये डिस्क जो स्टोरेज है उसमें से डेटा लेके सर्वर उठाता है वहां से और ये वर्क स्टेशन को दे देता है। ये इसका काम है, ठीक है। ये नेटवर्क रिसोर्सेज फॉल्स अंडर ऑल दैट। वी विल गो ऑन। ये बोल रहे हैं being on a network bring responsibility, and it really goes on to security and stuff, which we'll hopefully cover later on. अच्छा, ये है interesting. Network operating systems, NOSs. PCs use a disk operating system that controls the file system and how the applications communicate with the hard disk. Networks use a network operating system to control the communication with resources and the flow of data across the network. The NOS runs on the server. Some of the more popular NOS are Unix and Linux and Microsoft Windows Server Series 2012, 8 and so on. Several other companies offer network operating system as well. अच्छा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले जो बताया था कि जो सर्वर है, सर्वर 2008 एंड 2012, वो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस ही ये है कि वो सर्व करे नेटवर्क के ऊपर। विंडोज 11, विंडोज 10 का फुल पर्पस ये नहीं है कि वो सर्व करे, उसका पर्पस ये है कि वो कंज्यूम करे, वो इंफॉर्मेशन ले, क्योंकि वो वर्क स्टेशन के ऊपर जाता है मोस्टली। इसी तरह से यूनिक्स और लिनक्स के अंदर भी ऐसे हैं, जैसे मैंने वो XCPNG आपको दिखाया था अभी, वो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के ऊपर है वो बना हुआ, वो लिनक्स का है, ठीक है ना। तो that's basically NOS. Now, network resource access. We have discussed two major components of typical network: server and workstation, and we have also talked briefly about network resources. Let's dive into a bit deeper on how the resources are accessed on a network. Then let's see. There are generally two resource access model: peer-to-peer and client-server. It is important to choose the appropriate model. How do you decide what type of resource model is needed? You must first think about the following questions. दो मॉडल होते हैं, एक तो होता है peer to peer और दूसरा होता है client to server. यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये peer to peer है, दो कंप्यूटर है ना, दो कंप्यूटर आप लगा दें, ये peer to peer हो गया, ठीक है। client to peer जो होगा ना, उसके बीच में सर्वर आ जाएगा। आप अगर पेज नंबर 478 पे देखेंगे ना, तो बीच में सर्वर आ गया, तो क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये अभी गो बैक टू द क्वेश्चन, लेकिन ये डिटरमिन करने के लिए कि आपको कैसा नेटवर्क सेटअप करना है, आपके ये क्वेश्चंस
पहले आंसर करने पड़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज कितनी है, कितनी सिक्योरिटी चाहिए उनको, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी हार्डवेयर दे वांट, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो लोग स्पेंड करने को तैयार हैं, कितना ओवरऑल कॉस्ट होगा, these things. But I will tell you, peer-to-peer networking these days don't happen because LAN इतने पावरफुल और इतने अच्छे हो गए हैं एडवांसमेंट वाइज कि you don't need PAN, you don't need peer-to-peer because client to server के अंदर फिर आ जाता है client to router and then server और client to router and then another client. ठीक है ना, जैसे हम नीचे जाते हैं, जो पिक्चर हमने देखी थी अभी ये पीयर टू पीयर नेटवर्क की, इसके अंदर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, एंड देन जो सेकंड कंप्यूटर दैट्स कनेक्टेड टू द प्रिंटर। इसके अंदर क्या है कि इन पीयर टू पीयर नेटवर्क द कंप्यूटर्स एक्ट एज बोथ सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिक्वेस्टर। एन एग्जांपल टू द पीयर टू पीयर इज शोन बिलो। इसके बीच में अगर राउटर डाल दो आप तो वो फिर पीयर टू पीयर नहीं रहता है। So if I go up and read about this, that networks cannot just be put together at the drop of a hat. A lot of planning is required. This Amazon बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ऐसे नहीं है कि बस हमने कंप्यूटर जोड़ी है किया वो किया कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हो गया। नहीं, प्लानिंग के लिए एक दो साल लग जाते हैं खाली प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के अंदर, एंड फिर जाके उसके ऊपर काम होता है। ठीक है, The peer-to-peer model is great for a small, simple, inexpensive network. This model can be set up almost instantly with little extra hardware required. Many versions of Windows 8 and 7 Vista as well as Linux and Mac OS are popular operating system environments that support peer-to-peer resources model. Peer-to-peer network, also referred to as work groups. Generally speaking, there is no centralized administration or control in the peer-to-peer resource model. Every station has unique control over the resources that the computer owns, and each station must be administered separately. However, this very lack of centralized control can make administration. तो बेसिकली जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, इन्होंने राउटर का इनमें बताया नहीं है, बट पांच कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, पांच कंप्यूटर अगर वो नेटवर्क के ऊपर हम डाल देते हैं तो पांचों पांच कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा है उनका खुद का डेटा है, वो उनकी खुद की सिक्योरिटी है, उनकी खुद की एक्सेस है। अगर कंप्यूटर नंबर 1 को कुछ भी एक्सेस करना है तो कंप्यूटर नंबर 5 से उसको मांगना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर नंबर 5 का यूजर नेम और पासवर्ड सब होगा तो वो खींच सकता है। वैसे ही अगर कंप्यूटर नंबर 5 को कंप्यूटर नंबर 1 से कुछ चाहिए होगा, ही विल हैव टू डू द सेम थिंग। उनकी खुद की रिसोर्सेज है, सारे कंप्यूटर की खुद की हार्ड ड्राइव है, उनकी खुद की मेमोरी है। पर जो क्लाइंट टू सर्वर है ना, उसके अंदर वो सेंट्रलाइज लोकेशन के अंदर सब स्टोर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ कंपनी टू मैनेज 5 डिफरेंट कंप्यूटर्स और मैनेज जस्ट 1 कंप्यूटर। व्हिच वन इज इजी? मैनेजिंग 1 कंप्यूटर इज मोर इजी, राइट? तो वो सर्वर जो है बिग कंपनीज के अंदर, दैट्स व्हाई यू विल सी मोस्टली सर्वर्स, बिकॉज जैसे अगर आप हेल्प डेस्क के सिस्टम एडमिन में काम करोगे, and if they give you, especially in systems side, system server side, तो आप सर्वर को मैनेज करोगे, आपका काम होगा सर्वर को मैनेज करने का। डेस्कटॉप एंड स्टफ यू विल नॉट बी मैनेजिंग एज मच। With this type of network meet the needs of organizations today and in the future. Peer-to-peer resource model are generally considered the right choice for small companies that don't expect future growth. Small companies that expect growth, on the other hand, should not choose this model. Client server, also known as server-based model, is better than the peer-to-peer model for large networks. More than 10 computers can utilize that need a more secure environment and centralized control. इसको मैं स्किप करता हूँ। मैंने बता दिया है कि सर्वर जो है कनेक्ट होता है, you need more security. From a networking management perspective, it is very simple. I don't want to say simple, but it makes life a whole lot easier because you're managing, आप manage कर रहे हो एक system versus 10 different systems. So server client to server size model is a way to go for usually large companies. लेकिन जो small companies है उनको भी मेरे हिसाब से वही मॉडल यूज करना चाहिए, बिकॉज जो नेटवर्क मैनेजमेंट पर्सन है will make it a whole lot easier. एंड डेटा रिडंडेंसी उससे काफी आ जाती है कि 5 कंप्यूटर में से किसी एक के कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव उड़ गई तो देन दे लूज द डेटा। सर्वर के ऊपर सब डेटा होता है, देन इट्स सेफ। और यहाँ पे हमने पिक्चर दी हुई है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू
Network topologies. A topology is a way of laying out a network. When you plan and install a network, you need to choose the right topology for your situation. Each type differs from the other, but by its cost, ease of installation, fault tolerance, how the topology handles problems such as cable breaks, and ease of reconfiguration such as adding a new workstation. 5 किस्म की टोपोलॉजीज होती है: बस, स्टार, रिंग, मैश एंड हाइब्रिड। ये टोपोलॉजीज का मकसद ये है कि बेसिकली कैसे नेटवर्क बनाने से पहले आपको पूरी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है कि हम नेटवर्क कनेक्ट कैसे करेंगे, क्या चीज़ किससे कनेक्ट होगी, ये टोपोलॉजी बनती है। जो हमने जो पिक्चर देखी थी दैट वाज अ टोपोलॉजी। Each topology has advantages and disadvantages. After the following sections, check out table 6.1 which summarizes this. So bus जो है, bus topology is cheap, easy to install. ये इसका advantage है। Disadvantage क्या है? Difficult to reconfigure. A break in the bus disables the entire network. एक break हो गया उसके bus के अंदर, it will disable the entire network. Star किस्म की जो topology है, and hopefully वो picture देंगे नीचे इसकी, is cheap, easy to install and reconfigure. वो सब reconfigure भी हो जाता है। and एक केबल टूट गई, सिंगल केबल फेलियर, तो वो खराब नहीं होता है। but it's little bit expensive than bus. Ring network जो है efficient है and easy to install है, but it's not cheap. Reconfiguration is difficult, उसको अगर expand करना is very difficult and is very expensive. Mesh network जो है is fault tolerance. Mesh network के अंदर 5 डिवाइसेस है, उसमें से एक डिवाइस भी अगर खत्म हो गया फिर भी आपका नेटवर्क चलेगा, but it's expensive, it's hard to set up. Hybrid gives you a combination of best both features of each topology. Complex, less so than mesh however. So mesh से सस्ता है, but it's mixing mesh and the other topology, one of the other topology, and it's a little bit cheaper than the mesh alone. So the bus topology is the simplest. It consists of a single cable that runs to every workstation. Figure number 6.7 के अंदर नीचे दिखाएंगे वो लोग। This topology uses the least amount of cabling. Each computer shares the same data and address path. With the bus topology, message pass through the trunk, and each workstation checks to see if a message is addressed to it. If the address of the message matches the workstation address, the network adapter retrieves it. If not, the message is ignored. बस टोपोलॉजी के अंदर एक सर्वर है और केबल जो है आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर में जाता है। इसके अंदर प्रॉब्लम भी क्या होती है, ये डेटा सबको भेजता है, सारे कंप्यूटर के पास डेटा आएगा, सारे कंप्यूटर विल लुक एट इट, विल प्रोसेस इट एंड देन इग्नोर इट। अगर वो डेटा उनका नहीं होगा वो इग्नोर कर देंगे। इससे ना नेटवर्क का जो कंजेशन होता है ना वो भी काफी क्रिएट हो जाता है। Cable systems that use the bus topology are easy to install. You run a cable from one computer to the last. All of the remaining computer attached to the cable somewhere in between. Because of the simplicity of the installation and because of the low cost of cable, bus topology cabling systems are the cheapest to install. Although the bus topology uses the least amount of cabling, it is difficult to add workstation. If you want to add another workstation, you have to reroute the cable completely and possibly run 2 additional lengths of it. दूसरा एक बार बन गया तो दूसरा कंप्यूटर ऐड करने के लिए आपको पूरा न्यू केबल अलग से रन करके उसके 2 एडिशनल पैथ क्रिएट करने पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ऐड एनीथिंग इन द बस टोपोलॉजी। सही ना? Therefore, such a system is expensive to maintain and can be difficult to troubleshoot. You will rarely run across physical bus networks in use today. ये आज के ज़माने में यूज़ नहीं होते हैं। Star topology जो है वो branches each network devices off a central device called a hub or a switch, making it easy to add a new workstation. If a workstation goes down, it does not affect the entire network. If the central device goes down, the entire network goes with it. Because of this, the hub or switch is called a single point of failure. Show the simple start network diagram here. घर के अंदर यूजुअली ऐसे लगा हुआ होता है, एक स्विच होती है या राउटर लगा हुआ होता है, सारे कंप्यूटर से ज्वाइन होते हैं। अगर राउटर चला गया सारा नेटवर्क डेड हो जाता है आपका। तो ये स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इन टुडेज वर्ल्ड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। रिंग टोपोलॉजी
In a ring topology, each computer connects to two other computers, joining them in a circle and creating a unidirectional path where messages move from workstation to workstation. Each entity participating in the ring reads a message and then regenerates it and hands it to its neighbor on a different network cable. ये जो है अब यूज नहीं होता है because this is not efficient way. एक कंप्यूटर को अब मैसेज होगा उसको देना होगा तीसरे कंप्यूटर को, वो सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे कंप्यूटर के थ्रू पास होगा, सारे कंप्यूटर को रीड करना पड़ेगा, सारे कंप्यूटर्स को फिर आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो ये जितनी प्रोसेसिंग होती है वो वेस्ट हो रही है काफी प्रोसेसिंग ऑन दिस. So ring topology may not be work that much. It has a very low fault tolerance. जैसे एक रिंग खत्म हो गई तो पूरा आपका नेटवर्क खराब होगा. Mesh topology is the most complex in terms of physical design. In this topology, each device is connected to each other device. This topology is rarely found in LANs, mainly because of the complexity of the cabling. If there are X computers, there will be X divided by 2 cables in the network. For example, if you have 5 computers in a mesh network, it will use 5 times almost 5 minus 1 divided by 2 equals 10 cables. So 5 computers will use 10 cables. This complexity is compounded when you add another workstation. For example, your 5 computer 10 cable network will jump to 15 cables if you add just one more computer. Imagine how the person doing the job to कितना expensive हो जाता है mesh network. पर mesh network की redundancy बहुत होती है. If they would like to have come up with 50 computers, that would be about 1225 cables. ये picture number 6 point क्या है 6.10 के अंदर mesh network इन्होंने शो किया हुआ है. हर डिवाइस में से दो केबल निकल रही है. एक केबल भी डाई हो गई, then you still have the network. Hybrid topology is simply a mix of the other technologies. It would be impossible to illustrate it because there are many combinations. In fact, most network arrays are not only hybrid but heterogeneous. They include a mix of components of different types and brands. The hybrid network may be more expensive than some types of network topology, but it takes the best features of all of the other topologies and exploits them. इसके अंदर इन्होंने इसकी एग्जांपल ली थी. आज की तारीख में हाइब्रिड और स्टार टोपोलॉजी मेनली यूज होती है. स्टार टोपोलॉजी अपना राउटर या स्विच लगा दिया एंड देन कम्युनिकेट्स टू दैट, और हाइब्रिड लगा दिया with multiple different brands and different mix of components and उससे work. Rules of communication. Regardless of the types of network you choose to implement, the computers on that network need to know how to talk to each other. To facilitate communication across a network, computers use a common language called protocol. Computers को एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ चीज चाहिए, कैसे वो कम्युनिकेट करें, तो उनकी जो जबान होती है उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल है ना, वो उनकी नेटवर्क की जबान को आप बोल सकते हैं. चैप्टर 7 के अंदर हम मोस्टली इसका कवर करेंगे, बट अभी के लिए इंट्रोडक्शन टीसीपी आईपी के अंदर कवर होगा. बट एसेंशियली दे आर लैंग्वेजेस, as I said, much like English is a language. Within each language there are rules that need to be followed so both computers understand the right communication behavior. See, example is a language. वो लैंग्वेज एक दूसरे को समझ आती है, दूसरे कंप्यूटर्स को समझ आती है. Computers need standards to follow to keep their communication clear. Different standards are used to describe the rules that computers need to follow to communicate with each other. The most important communication framework in the backbone of all networking is the OSI model. This is very important. OSI model is the backbone of the entire network. You have to understand this in order to even understand or diagnose anything. So the OSI model is not specifically listed in CompTIA exam objectives. However, बोल रहे हैं कि CompTIA के A+ एग्जाम में नहीं है, पर CompTIA के A+ नेटवर्किंग एग्जाम में ये डेफिनेटली होना चाहिए. OSI model जो है, the International Organization of Standardization (ISO) published an Open System Interconnection (OSI).
model in 1984 to provide a common way of describing network protocols. The ISO put together is 7 layers. OSI model के अंदर 7 layers होती है between the stages of communication. Each layer के अंदर they adding a layer above or below it. So 7 layers की communication होती है इस OSI model में. यहाँ पे नीचे hopefully वो लोग picture देंगे. The theory behind the OSI model is this. As the transmission takes place, the higher layers pass data through the lower layer. नीचे से ऊपर जाता है data. इस layer इस OSI model के अंदर. As this data passes through a layer, that layer tags its information, also called header, onto the beginning of the information being transmitted until it reaches the bottom layer. A layer may also add a trailer to the end of the data. Excuse me. The bottom layer sends the information out on the wire or in the air in case of the wireless. After receiving the end, the bottom layer receives and reads the information in the header, removes the header and any associated trailer related to its layer, and then passes the remainder to the next highest layer. This procedure continues until the topmost layer receives the data that the sending computer sends. The OSI model layer are listed here. हमें एक picture दिखा देना ये लोग दिखाई हुई है, but hold on. सात OSI अंदर के अंदर 7 layer हैं. I'm going to move to screen number 3 real quick and show you here. ये अपना है OSI मॉडल. OSI मॉडल के अंदर ये लेयर्स बनी हुई है, ठीक है. नंबर 1 इज फिजिकल, नंबर 2 इज डेटा लिंक, नंबर 3 इज नेटवर्क, नंबर 4 इज ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन. नेटवर्क के अंदर जब हम और जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी नेटवर्क का बंदा होगा वो ऐसे ही बात करेगा. लेयर 2, लेयर 3, लेयर 7, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो होते हैं लेयर 7 आते हैं, लेयर 3 आते हैं, वो इसी नाम से उसको बुलाएंगे. तो ये लेयर OSI मॉडल को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम ट्रबल शूट भी करेंगे ना, सो दिस विल कम हैंडी. ठीक है, तो वी गो बैक टू स्क्रीन 1 PDF. एप्लीकेशन लेयर से हम स्टार्ट करेंगे, विच इज द 7th लेयर. Allows access to the network services. This is the layer at which file services, print services and other applications operate. Application layer जो है, you can think of this as any application on a computer. Any services, print services, network services. This is the 7th layer on the OSI model. उसका function ये है कि ये network services को run करता है, file services, any services को ये run करता है. Presentation layer, which is the 6th layer, determines the look or format of the data. This layer performs protocol conversion and manages data compression, data translation and encryption. इसका काम है देखना, ये देखता है प्रोटोकॉल को जो है कन्वर्ट करता है, उसका डेटा मैनेज करता है, ट्रांसलेट करता है और एन्क्रिप्ट करता है. प्रेजेंटेशन लेयर. द कैरेक्टर सेट इंफॉर्मेशन आल्सो इज डिटरमाइंड एट दिस लेवल. जो कैरेक्टर सेट है ना, वो इस लेवल के ऊपर ही डिटरमाइन होता है. द कैरेक्टर सेट determines which numbers represent which alphanumeric characters. Session layers. Session layers allows applications on different computers to establish, maintain, and end a session. A session is one virtual conversion. For example, all the procedures needed to transfer a single file make up one session. ठीक है ना? ये सेशन लेयर जो है वो बेसिकली तो मेंटेन करता है, एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है एंड करता है, खत्म करता है वो सेशंस को. ये सेशन लेयर का काम है. जब हम ट्रबल शूट करेंगे ना, सेशन लेयर भी कमर्शियली है. जैसे एग्जांपल ये बता रहे हैं कि हमने कोई एक फाइल एक नेटवर्क से एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर की, तो जो ये सिंगल फाइल जो ट्रांसफर हो रही है ना, दैट मेक्स अप वन सेशन.
एंड वंस द सेशन इज ओवर ए न्यू प्रोसेस बिगिंस, वो दूसरा सेशन होता है। फिर एक ये सेशन खत्म हो गया, फिर इसके बाद दूसरा सेशन आएगा, वो कुछ और ट्रांसफर हो रहा होगा उस सेशन के अंदर, मे बी कोई दूसरी फाइल ट्रांसफर होगी, व्हाटएवर। दिस लेयर इनेबल्स नेटवर्क प्रोसीजर्स such as identifying passwords, logons and network monitoring. सेशंस, हम तो खाली एक सेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम जब गूगल के अंदर टाइप करते हैं कुछ भी, it goes through so many different sessions in milliseconds. एक सेशंस के अंदर हमने गूगल टाइप किया, जैसे हमने गूगल टाइप किया और एंटर किया तो गूगल की रिक्वेस्ट जाती है एक सेशन में, दूसरी रिक्वेस्ट सेशन में आती है, उसमें सिन का पैकेट भेजता है, एक्नॉलेज का पैकेट भेजता है, वो मैं वायर शार्ट के अंदर आगे जाके बताऊंगा उसकी कैसी कम्युनिकेशन होती है सेशन के ऊपर, वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर. दिस लेयर कंट्रोल्स द डेटा फ्लो and troubleshoots any problem with transmitting or receiving datagrams. It also takes large messages and segments them into smaller ones, and takes the smaller segments and combines them into a single larger message, depending on which way the traffic is flowing. Finally, the TCP protocol, one of the two options at this layer, has the important job of verifying that the destination host has received all packets, providing error checking and reliable end-to-end communication. TCP लेयर जो है, TCP प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करती है। TCP लेयर जो है वो उसका काम, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम बेसिकली ये है कि ये बड़े मैसेजेस को छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको कंबाइन करके सिंगल मैसेज के अंदर या लार्जर मैसेज के अंदर उसको भेजती है। और जो TCP प्रोटोकॉल विच फॉल्स अंडर द ट्रांसपोर्ट लेयर, ये वेरीफाई करती है कि ये जो पैकेज यहाँ से गूगल में गया वो गूगल से यहाँ वापस आया, वो जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, पूरा कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर का, वो कम्युनिकेशन को वेरीफाई करता है ये TCP प्रोटोकॉल। अगर वो TCP प्रोटोकॉल जब ब्रेक हो जाता है देन वो नए सिरे से नया सेशन क्रिएट करता है। इसमें आएगा एक UDP प्रोटोकॉल भी आएगा, ये TCP प्रोटोकॉल है। UDP प्रोटोकॉल टोटली ऑपोजिट करता है। UDP प्रोटोकॉल जो है वो चेक नहीं करता है, वो बस सेंड करता रहता है, सेंड करता रहता है। अब दूसरे ऑन द सर्वर साइड उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो UDP को नहीं पता, TCP को पता होता है, बिकॉज TCP वो सर्वर से जवाब मांगता है कि भाई तेरे को मिला, वो सर्वर बोलता है हाँ मिल गया, तो फिर TCP तुम्हें आपको बताता है कि हाँ इसको मिल गया है, वो राउंड कंप्लीट हो गया। UDP क्या बोलता है, UDP जो प्रोटोकॉल है वो बस सर्वर को आवाज दे रहा होता है, मैंने भेज दिया, बस बोल रहा है जो भी है, फाइल भेज दी। सर्वर कोई रिस्पांस नहीं देता है उसको, और UDP उससे कोई रिस्पांस मांगता भी नहीं है। तो इसलिए जब हम VPN ऑन करते हैं ना, VPN टनल, आप देखिएगा VPN टनल मोस्टली UDP के अंदर काम करता है। वो इसलिए काम करता है कि UDP जो है ना कॉन्स्टेंटली वो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है, ठीक है ना। इसी के अंदर आपका VPN ब्रेक नहीं होता है। और अगर आप VPN को TCP के प्रोटोकॉल पे रन करोगे ना, आप देखोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम आपका VPN डिस्कनेक्ट होगा। That doesn't mean कि TCP is good and UDP is not good, or UDP is good and TCP is not. That doesn't mean that. It just means that इन दोनों प्रोटोकॉल के स्पेसिफिक पर्पस हैं, ठीक है। फिर वो पर्पस क्या आगे जाके कवर करूंगा मैं। Third is network layer. This layer is responsible for logical addressing of messages. At this layer, the data is organized into chunks called packets. The network layer is something like the traffic cop to the police wala. It is able to judge the best network path for the data based on network conditions, priority and other variables. This layer manages traffic through packet switching, routing and controlling congestion of data. Network layer को आप ऐसे समझ लो कि ट्रैफिक पुलिस वाला होता है ना, चार तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, चार तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है आप समझ लो चार अलग कंप्यूटर है, एक्सक्यूज मी, चारों रोड अलग अलग जगह से ट्रैफिक दे रहे हैं, बीच में ये नेटवर्क लेयर वाला खड़ा हुआ है, पुलिस वाला। ये नेटवर्क लेयर वाला बोलता है सबसे पहले तुम आगे आओ, हाँ तुम रुको थोड़ी देर, उसको आगे जाने दो, ये कंट्रोल करता है, इसका काम ये पुलिसिंग करता है। और इसकी लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखें तो डेटा को वो ऑर्गेनाइज करके चंक्स के अंदर पैकेट्स में भेजता है, ये नेटवर्क लेयर का काम है।
Data link layer जो है number 2 arranges data into chunks called frames. Included in these chunks is control information indicating the beginning and the end of the data stream. This layer is very important because it makes transmission easier and more manageable, and it allows for error checking within the data frame. The data link layer also describes the unique physical address, also known as the MAC address for each NIC. The data link layer is actually subdivided into two sections: media access control MAC and LLC, which is logical link control. Data link layer is very important because ये जो है chunks data को chunks के अंदर arrange करता है और उसको हम बोलते हैं frames. Network layer के अंदर जो chunks थे उसको packets बोलते हैं. Data layer के अंदर जो chunks को ये merge करता है उसको frames बोलते हैं. इस frames के अंदर ये हम बहुत ही deep के अंदर जाएंगे. जो फ्रेम्स होती है ना, बेसिकली उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन, हेडर इंफॉर्मेशन जाती है. उसके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ होता है ये आपका कंप्यूटर का मैक एड्रेस, फिर आपका निक की इंफॉर्मेशन, ये सब फ्रेम्स के अंदर जाती है इंफॉर्मेशन, और फिर ये नेक्स्ट लेयर पे जाती है. इवेंचुअली जब ये 7th लेयर के ऊपर पहुंचती है तो जिसको पहुंचती है उसको पता चलता है कि ये एग्जैक्टली मैसेज किसके पास से आया है. तो ये डेटा लिंक लेयर का काम है. Physical layer describes how the data gets transmitted over a communication medium. This layer defines how long each piece of data is and the translation of each into the electrical pulses or light impulses that are sent over the wires, or radio waves that are sent through the air. It decides whether data travels unidirectionally or bidirectionally across the hardware. It also relates electrical, optical, mechanical, and functional implications to the cable. Basically, the physical layer is literally a physical layer. You know, a wire देख लो, Ethernet cable या fiber optic का जो cable है वो electrical pulses उसके through भेजती है. वो physical layer का काम ये है. जो electrical data जो जाता है ना तार के through, वो physical layer है. So in this diagram, note the relationship of each layer to the other and the function of each layer. देखिए पूरा सर्कल क्रिएट होता है. नीचे आएगा, जो ट्रैफिक ऊपर जा रहा है वो ही फिर नीचे भी आता है, जस्ट टू कंफर्म एवरीथिंग एल्स. ठीक है, यहाँ पे क्विकली मैं पढ़ लेता हूँ. एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज लाइक file services, print services, and messaging services, not application like Word. ये application layer जो है ना वो नेटवर्क के बेस के ऊपर है. जैसे इसमें बोले जो वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक, उसकी बात नहीं हो रही है. ये नेटवर्क लेवल के ऊपर जो ट्रांसमिशन होती है ना उसकी बात हो रही है, वो एप्लीकेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा, फॉर एग्जांपल द ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर सेट्स. ASCII के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उसकी ट्रांसलेशन करते हैं. Basically, ASCII codes जो होते हैं ना उसके. Session layer is responsible for establishing and maintaining a communication session. इसका काम है सेशन को स्टार्ट करना, मेंटेन करना और उसको खत्म करना. ये सेशन लगेगा. Transport layer is responsible for providing reliable end-to-end communication. It includes most of the error control and flow. जैसे मैंने TCP की बात की, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम यही है, end-to-end reliable communication देने का काम इसका है, बिकॉज वो कम्युनिकेशन वेरीफाई करता है दोनों पार्टी से. नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल नेटवर्क एड्रेसिंग, सम एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म एट दिस लेवल. डेटा लिंक एट फिजिकल लेवल, वी जस्ट वेंट थ्रू दैट, वी विल स्किप दैट. IEEE 802 standards. Continuing over the theme communication, it's time to introduce one final group of standards. You've already learned about the protocol, which is called a language. Now think of IEEE 802 standard as syntax, or the rules that govern who communicates, when they do it, and how they do it. So the IEEE stands for Institution of Electrical and Electronics Engineers. They formed a subcommittee to create standards for network types. These standards specify certain types of networks, although not every network protocol is covered by them. This model contains several categories, and the following are the most popular. 802.11 बहुत ही कॉमन है, आपको सब जगह दिखेगा बिकॉज दिस इज अ वायरलेस नेटवर्क. ये टोकन रिंग आपको इतना नहीं दिखेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की थोड़ा कम है. ये 802.3 which is a LAN,
in CSMA and Ethernet is common. Link logical control is somewhat of common. 802.1x अभी यहाँ पे नहीं आया, so we'll get to that later on. These standards were designed primarily to for enhancements to the bottom 3 layers the OSI for the OSI model, which is physical, physical data and network layer को ये help करता है 3 layers. The IEEE 802 standard breaks the data link layer into 2 sublayers: logical link layer and a media access MAC address sublayer. In the logical link layer LLC sublayer, data link communications are managed. The MAC address, which is a media access control, the MAC sublayer watches out for data collisions and manages device address, physical addresses, also referred to as MAC addresses. ठीक है, ये MAC address की कोई बात हो रही है. और ये अभी मैंने बात की 802.11g and n, ये वायरलेस नेटवर्क्स के जो नेटवर्क है. अब AC and AC is for 5 GHz and AX 802.11ax Wi-Fi 6 के स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं. ठीक है, ये G and N अब बहुत पुराने हो गए हैं. यहाँ पे लोग स्पीड बता रहे हैं. I'm not gonna cover that because no one uses this anymore. So talking to we'll pass that over. Identifying common network hardware. We have looked at the types of network topologies and the way of communication are handled. That's all logical stuff. Now, to really get computers to talk to each other, it requires hardware. Now, every computer on the network needs to have a network adapter, which is a NIC card, right? And in many cases, you also need some sort of cable, which is Ethernet cable, to put them together. Wireless network connection is the exception, but the back end of the wireless network, there still components are wired together. Wireless जो हम करते हैं, वो wireless तो चले एक है, पर वो wireless के जो पीछे है, वहाँ पे wire वैसे भी लगा ही होता है. There is no such thing as 100% wireless. Cell phone towers भी हैं, जो wireless phone पे बात करते हैं, हम वो phone पे wireless बात कर रहे हैं. वो जो towers जो हैं, eventually वो किसी wired device से communicate कर ही रहे हैं. Network interface card. The NICs are also referred to as network adapter cards, provide the physical interface. I will pass that because ये हम cover कर चुके हैं. Compatibility. NIC कार्ड्स जो है वो 3 टाइप के आते हैं जो हमने बताए थे. एक मदरबोर्ड के अंदर पहले से लगे हुए होते हैं, एक PCI एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं, और तीसरा हम USB इंटरफेस के अंदर लगा सकते हैं. ठीक है, so we're gonna pass this. Network interface card performance. The most important goal of the NIC is to optimize the performance of the network and minimize the amount of time needed to transfer the data across the network. The key is to ensure that you get the fastest card that you type. Okay. इसके अंदर बेसिकली बोल रहे हैं कि जो वाईफाई कार्ड है, they should have wrote wireless here, but anyway यहाँ पे ये टर्म्स बता रहे हैं वायरलेस की 802.11b, G and N is the fastest in this document. इस डॉक्यूमेंट के अंदर N is the fastest और certain amount of megabits per second ये ट्रांसफर करता है. I'm gonna pass that as well. ये पढ़ना है. मैं क्विकली बता देता हूँ कि जो वाईफाई कार्ड है, N was I believe was giving about 50 megabits per second or something, and then AC came out. AC was 5 gigahertz का नेटवर्क था, and which gave about 400 to 500 megabits per second, and then AX came out. AX जो है वो Wi-Fi 6 का है. Wi-Fi के ऊपर now you can go up to like 1 or 2 GB transfer rates. So Wi-Fi 6 has gotten really better, but the distance जो है उसका communication वो कम है. ठीक है. In addition, NICs can send data using either full duplex or half duplex mode. I think you meant above कहीं जहाँ पे cover किया था, but we'll read about it. That half duplex communication means that between the sender and receiver, only one of them can transmit at any one time.
ठीक है ना। हैव डुप्लेक्स में मतलब है कि एक टाइम एक ही डिवाइस काम कर सकता है, काम नहीं मतलब एक ही डिवाइस बोल सकता है। मैं जैसे इसकी एक एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स ही पता है, रियल लाइफ एग्जांपल जो वॉकी टॉकी होते हैं ना, वॉकी टॉकी मैं खाली एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ, वो ऐसे काम नहीं करते हैं, मैं खाली एग्जांपल के लिए कि वॉकी टॉकी जो है ना वो आप जब बटन दबाओगे तो आप खाली बोल सकोगे, दूसरा पर्सन खाली सुन सकेगा। क्योंकि अगर एट द सेम टाइम अगर आपने बटन दबाया और दूसरे ने भी बटन दबाया बात करने का, किसी की आवाज नहीं जाएगी। सो दैट्स थिंक ऑफ दैट एज लाइक अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, कि एक टाइम में एक बंदा बोल सकता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज अ कंप्यूटर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। फोन सिस्टम अपना जो सेल फोन होता है या लैंडलाइन होती है, फोन हम फोन पे वायरलेस भी बात करते हैं या वायर से बात करते हैं, जो भी दोनों टाइम में दोनों बंदे बोल सकते हैं, आपको दोनों की आवाज आएगी, एक दूसरे पे चीख सकते हो, जो भी है आवाज आएगी आपको। वॉकी टॉकी के अंदर आप एक दूसरे पे चीख नहीं सकते एक साथ सही ना। Now, the main advantage of full duplex over half duplex communication is performance. As I said, performance is the main thing. NICs, especially fast Ethernet NICs, can operate twice as fast 200 NICs in full duplex mode as they do normally have. तो ये मैंने पहले बताया था। अभी ये लोग फास्ट इथरनेट की बात कर रहे हैं, जो पुराने जो कार्ड आते थे वो खाली 100 मेगाबिट्स पे की स्पीड पे थे। अभी 1 गीगाबिट के जो कार्ड्स आए हैं वो आते हैं। इफ यू अगर आप अपने नेटवर्क को चेंज कर दो हाफ डुप्लेक्स में, तो theoretically it will give you 500 megabits of speed theoretically. In practical it will probably give you I don't know maybe 10 or 15. ठीक है। अगर फुल डुप्लेक्स में डालोगे साइमल्टेनियस 1 GB पे 1000 MB पे कम्युनिकेशन होगा, एंड इन प्रैक्टिकल यू विल प्रॉब्ली गेट 100-200 MB। ठीक है। हर डिवाइस के मैक एड्रेस होते हैं, हर निक जो है जो उनका मैक एड्रेस होता है। If two NICs are on the same network of the same hardware, either one will be able to communicate. For this reason, the IEEE तो ये IEEE वालों ने जो ये स्टैंडर्ड बनाया है इसी के लिए बनाया है कि अगर एक सिस्टम के अंदर आप 2 निक कार्ड डाल दो तो कैसे पता चलेगा कौन सा कार्ड किससे कम्युनिकेट करे। तो जैसे गाड़ियों के अंदर विन नंबर डाला हुआ है, एवरी गाड़ी का विन नंबर होता है, एवरी फोन का IMEI नंबर होता है, वैसे ही एवरी डिवाइस नेटवर्क डिवाइस एवरी नेटवर्क डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, निक का मैक एड्रेस होता है। एक कंपेयर में 2 निक कार्ड डाल दो आप, तो मैक एड्रेस डिटरमाइन करता है कि कौन सा निक कार्ड कौन सा है। निक ड्राइवर, अब अगर आप एक्स्ट्रा निक डाल रहे हो तो उसके ड्राइवर भी समटाइम्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आज की तारीख में यूजुअली माइक्रो जो विंडोज है वो खुद ही पिक कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज यू हैव टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर्स। ठीक है ना। दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। केबल्स एंड कनेक्टर्स, when the data is passing through the OSI model and reaches the physical layer, it must find its way onto the medium that is used to transfer data physically from computer to computer. This medium is called the cable, or in the case of wireless network, the air. It is the NIC's role to prepare the data for transmission, but it is the cable's role to move the data properly to its intended destination. 7 layer में से 7 6 5 4 3 2 1 तक जब वो डेटा आता है, उसके बाद वो डेटा कंप्यूटर में से निकल के तार के अंदर जाता है, तार के अंदर जाके फिर दूसरे कंप्यूटर के निक कार्ड में जाता है या दूसरे प्रिंटर में जाता है, कहीं भी जाता है, पर वो दूसरे निक कार्ड में जाता है। तो केबल का काम है वो उस चीज को ट्रांसफर करना, और निक का काम है उसको रीड करना और आगे पुश करना। ठीक है। There are 3 main types of physical cabling to discuss: coaxial cable, twisted pair, and fiber optic. Wireless communication will be covered in chapter 8, installing wireless and SOHA networks. तो coaxial cable जो है maintains a center conductor. ये थोड़ा समझने वाली बात है, बिकॉज ये अभी भी यूज होती है। 3 चीज जो अभी हम बात करेंगे ये अभी भी यूज होती है। ठीक है। coaxial cable contains a center conductor core made of copper. बीच का जो वायर होता है वो कॉपर का होता है, कड़क जैसा होता है, which is surrounded by a plastic jacket with a braided shield over it. Either Teflon or plastic coating covers this metal sheet. जैसे पिक्चर के अंदर देख रहे हैं आप, एक है सेंटर वायर, ये कॉपर का बना हुआ है, उसके ऊपर एक इनर इंसुलेशन है, उसके ऊपर ये वायर मैश है,
कंडक्टर ये यूजुअली तार का भी बना हुआ होता है, ग्राउंडिंग के लिए भी जरूरत पड़ती है इसकी, और आउटर इंसुलेशन जो प्लास्टिक का होता है, ब्लैक और व्हाइट कलर होता है इसका. Now, common network cables are covered with plastic called polyvinyl chloride (PVC). While PVC is flexible, fairly durable, and inexpensive, it has a nasty side effects in it that it produces poisonous gas when burned. जब जलाते हैं तो उसमें से बहुत poisonous gas निकलती है. The alternative is a Teflon tape. Teflon tape काफी पानी और उसके अंदर गैस के अंदर हम यूज करते हैं चढ़ाने के लिए, पानी लीक ना. Teflon tape covering that is frequently referred to as plenum rated coating. That simply means that the coating does not produce toxic gas when burned and is rated for use in ventilation plenums that carry breathable air. This type of cable is more expensive, but it may be mandated by electrical code when our cable is hidden in walls or ceilings. तो अगर कोएक्सियल केबल रन हो रही है तो जो उसके अंदर अगर वो प्लास्टिक टेफलॉन टाइप का जो कवर ना अगर इंक्लूड हुआ हो, सो इट यहाँ के जो इलेक्ट्रिकल कोड होते हैं ना कंट्रीज के, हर कंट्रीज के अलग अलग इलेक्ट्रिकल कोड होते हैं, उस कोड के अगेंस्ट जाएगा. बिकॉज स्पेशली वो एक है ना, एक टॉक्सिक गैस भी इमिट करती है. केस आप दीवार के पीछे रन कर रहे हैं और कभी कभी घर के दीवार के पीछे हमने रन किया और बहुत गर्म हो जाती है वो केबल, तो it will start burning, and if it starts burning it's going to produce that type of gas which is poisonous. तो इलेक्ट्रिकल कोड के हिसाब से इसके अंदर ये टेफलॉन की जो टेप की कवरिंग होती है उससे वो गैस वाली स्मेल नहीं आती है. Coaxial cable is available in various specifications that are rated according to the radio guide RG system, which was originally developed by the US military. The thicker the copper, the further signal can travel. ये मैंने बात I think पहले कही थी उसमें फाइबर की जब हमने बात की थी. And with that comes a higher cost and less flexible cable. When coaxial cable was popular for networking, there were two standards that had fairly high usage: RG8 thicknet, RG58AU thinnet. Thicknet had a maximum segment distance 500 meter. Okay, I don't want to cover this actually. मैं खुद की बता देता हूँ. इसकी बिगेस्ट एग्जांपल ये है जो कॉमकास्ट वाले, एक्सफिनिटी वाले हैं, जो केबल प्रोवाइडर हैं यूएस के अंदर. जब फायोस नहीं आया था, फायोस कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं हुआ था, तब सब चीज कॉपर के ऊपर चलती थी, वो कोएक्सियल केबल के ऊपर चलती थी. तो उनका जो जमीन में से जो कॉपर का केबल जा रहा था वो रेगुलर केबल था, थिन था, इतना मोटा नहीं था. तो जब वेराइजन वालों ने फायोस डाला, उन्होंने फाइबर ऑप्टिक डाला जो जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है. जब उन्होंने वो डाला एंड वेराइजन वाले दे वर एबल टू गिव 1 gig ऑफ स्पीड, 1000 MB अप एंड डाउन, उस लाइट की वजह से, क्योंकि देयर इज नो लेटेंसी इन दैट. उस लाइट की वजह से जब वो लोग इतना पावरफुल इंटरनेट दे सकते थे, तो केबल कंपनी वालों ने फाइबर डालने के बजाय उन्होंने मोटी कॉपर डालना शुरू कर दी, which I feel that they have wasted money. तो अभी आज की तारीख में केबल वाले 1000 डाउन एंड 20 megs अप, सिर्फ that's it, at a residential level. कमर्शियल में थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, but still वो 1000 MB is in practical life is probably related to only 300 MB or less. और फाइबर की जो आपको जो आती है वो 1000 MB will give you 1000 MB. So there's a huge difference with that. So but the other things जो है, और and again जो कॉपर का thick wire होता है, that's the reason why they can send the signals further, hence the 1000 MB they are able to provide now. Connectors, yeah, ये सब यूज नहीं होते हैं, so I don't wanna go over that. This does get used, so I'm going to talk about this. Thinnet coax was much easier to use. So generally, Thinnet cables used a BNC connector. हम नीचे देखेंगे अभी, to attach a T-shaped connector that attached to the workstation. The other side of the cable, T connector, would either continue on with other Thinnet segment or be capped off with terminated. It is beyond the scope of this book to settle the. Okay, ये जो connector है, these are called like BNC male and female connectors, T connectors and stuff. So the one on the left top, that's the BNC T connector. This is the BNC male connector. This is the BNC female connector. ये सारे connectors आज भी
अगर आपके पास केबल आ रहा है घर में तो ये वाले केबल आपके घर के अंदर आते होंगे और ये केबल मॉडेम के अंदर जाते होंगे, ये वाले केबल, तो ये उसके लिए टीवी के अंदर भी जाते हैं ये एक्चुअली, ठीक है। अब मैं खाली पिक्चर टू पिक्चर जाता हूँ। ये स्प्लिटर है बेसिकली, एक केबल को दो केबल के अंदर स्प्लिट करना हो तो ये स्प्लिटर आप लगा दें, उससे ये आपका कनेक्शन स्प्लिट हो जाता है और उसकी डिस्टेंस जो उसकी जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉप नहीं होती है। Actually, on a higher distance उसकी सिग्नल does weaken based on what they're saying here. डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो उसका सिग्नल does drop. तो to avoid this maximum कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा स्प्लिटर यूज ना हो. That's the only way. But copper आप यूज कर रहे हैं तो there is no other way usually. The last type of coaxial cable we will cover is the F connector, and it is used with cable TV. The exposed end of the copper cable is pushed into the receptacle and the connector is threaded to the okay. ये देख लेते हैं, ये इसके ऊपर चूड़ी बनी हुई होती है. Okay, you can use this and you can use that other one also जो ऊपर दिखाया था. You can use that as well. Because remember ये खाली कनेक्टर है, इसका होल पर्पस है कि ताकि एक जगह प्लग करके वो बैठा रहे, चूड़ी लगा दे ताकि वो बैठा रहे. बट अगर ये मैं कनेक्टर निकाल देता हूँ, कनेक्टर निकाल के मैं अपना कोई भी मेटल का पीस लगा के ये मेटल घुसा दूंगा अंदर, इट विल स्टिल वर्क बिकॉज मेन थिंग इज द वायर. ठीक है, कनेक्टर इज ओनली द पर्पस कि हम किसी जगह पे कनेक्ट करके उसको हुक कर सकें. दैट्स द आइडिया. और ये ट्विस्ट होता है, देन इट हैज थ्रेड्स ऑन इट एंड इट विल टाइटन अप. अच्छा, ये जो है अभी मैं बताता हूँ आपको ट्विस्टेड पेयर. ट्विस्टेड पेयर इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ केबलिंग to use because its flexibility and low cost. It consists of several pairs of twisted wires around each other within an insulated jacket. ये twisted wire जो है ये अपना I'm not sure ये Cat 5 है कि क्या है, but mostly अब के ज़माने में Cat 5e यूज होता है. इस वायर के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वायर आते हैं जो हम नीचे जाके कवर करेंगे, पर मैं क्विकली बता दूं. ये जो ट्विस्ट आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग कलर कोडेड है. ये एक वायर जैकेट के अंदर जो ग्रे कलर का जैकेट है इसके अंदर 4 पेयर होते हैं और 8 कॉपर की केबल होती है. ये सारे कॉपर के वायर हैं, ठीक है. इसके ऊपर आपका इंटरनेट चलता है. अब जितने ज्यादा ट्विस्ट होंगे, जितने ज्यादा आप ट्विस्ट करेंगे इस केबल को, उतना तेज आपका इंटरनेट चलेगा. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रेवल करती है ना, अगर ये थोड़ा कम है, इसका जो ट्विस्ट है ये थोड़ा कम है, ये जो कम ट्विस्ट होता है ना उसकी वजह से जो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रेवल करती है ना, कैन नॉट ट्रेवल फास्ट एनफ. और जो आप उसको ज्यादा ट्विस्ट करोगे ना तो it will give you maybe even 10 GB of speed on a shorter distance. And this is where ये Cat 5 लग रही है या Cat 5e होगी, पर Cat 6, Cat 7 ऐसे जैसे जो Cat की और enhanced केबल आई हैं, आगे अगर होगी पिक्चर आप देखेंगे उसके अंदर ट्विस्ट बहुत होंगे, उसके ऊपर शील्ड लगी हुई होगी, उसके ऊपर बीच के अंदर डिवाइडर होगा. ये चारों तार भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे. अभी ये चारों तार एक दूसरे से टच होते हैं, उससे भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसके जो रेज जाती है उसकी वजह से उसके अंदर लेटेंसी आती है. तो जो Cat 6 and 7 के अंदर उन्होंने बीच में डिवाइडर डाला हुआ है, तो ये चारों केबल एक दूसरे से टच भी नहीं होती है. gives you more speed. So that's used in the internet. उनकी दो कैटेगरी होती है. एक होती है STP और UTP. STP means shielded twisted wire and UTP means unshielded. Shielded का मतलब ये है, यहाँ पे होपफुली दिया होगा, ये रहा. वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड. Shielded आप देख रहे हैं, ये हर पेयर के ऊपर एक फॉइल की पन्नी चढ़ी हुई है, ठीक है. और ऑन टॉप ऑफ दैट एक सिल्वर की पन्नी चढ़ी हुई है जो चारों तार के ऊपर है. तो इससे क्या होता है कि इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द वायर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वो खत्म हो जाती है. दो तार के अंदर से जो इलेक्ट्रिक जो स्टैटिक जाता है वो
फॉइल की वजह से उसके अंदर ही कंटेन हो जाता है, तो इसी की वजह से स्पीड बहुत बढ़ जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो दूसरा जो बड़ा जैकेट सिल्वर वाला दिया हुआ है जो कि चारों वायर को कवर करता है, ये आप किसी बाहर रन करें या दीवारों में रन करें और आपके आउटलेट या कोई नजदीक में हो, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल आउटलेट होते हैं उसके अंदर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकलती है। अगर ये वायर बगैर शील्ड के आप उसके साथ पैरेलल रन कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके नेटवर्क के अंदर लेटेंसी बहुत आ जाएगी, क्योंकि वो ट्रैफिक बराबर ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये शील्ड उसके लिए, अगर ये आप निकाल दें ये पन्नी तो इस यूटीपी अनशील्डेड, ये पन्नी चढ़ा दें तो इस एसटीपी इज शील्डेड। दैट्स द पर्पस, ठीक है। Twisted pair cable specifications. There aren't any STP standards that you really need to know about either for the test or real life situation. UTP is a different animal. It comes in several grades to offer different levels of performance and protect against electrical interference. Category 1 contains 2 twisted pair. If it's for voice हम cover नहीं कर रहे. Category 2 भी हम cover नहीं कर रहे. We should be covering. We're not covering. See, 10, these are not in service anymore. We are only going to cover Cat 5e and above. Cat 5e जो हमने ऊपर देखी can transmit up to 1 GB of speed theoretically. Okay, these are all theoretical speeds. कॉपर के वायर्स होते हैं, 4 ट्विस्टेड वायर्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ वायर्स होते हैं, ठीक है। कैटेगरी 6 जो होती है, मैंने अभी बताया, अप टू 10 GB ऑफ स्पीड इसके अंदर ट्रांसफर हो सकती है एट अ शॉर्टर डिस्टेंस विच इज 55 मीटर्स। इससे ज़्यादा करेंगे तो उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने बताया, इसके अंदर बीच के अंदर कैट्स, इसके अंदर बीच के अंदर डिवीजन भी दिया होना चाहिए, वो पिक्चर में उन्होंने बताया नहीं था। कैटेगरी 6A जो है वो इसके अंदर बेसिकली अप टू 100 मीटर जा सकती है। ये खाली कैटेगरी 6 है। फिर कैटेगरी 6 के अंदर A आई है जो कि ज़्यादा 100 मीटर तक जा सकती है, अप टू 10 GB ऑफ स्पीड, ठीक है ना, एट अ लॉन्गर डिस्टेंस। कैटेगरी 7 जो है इज एन इंक्रीमेंटल अपग्रेड ओवर कैटेगरी 6 की। Its most notable feature is that every pair is shielded, which provides better assistance to crosstalk and external noise. It can handle 10 GB up to 100 meters. You might also hit ACLA. In my personal experience, Cat 7 I would say is unnecessary. And यहाँ पे पिक्चर पता नहीं इन्होंने दी है कि नहीं, बट ये जो इन्होंने बताई है ना, ये ऊपर पिक्चर, ये इन्होंने इसमें बताया नहीं है कि इसके अंदर डिवीजन आता है। इसके अंदर डिवीजन आता है। Let me just show this real quick. I'm gonna hop onto the screen. हाँ देखा, ये देखना, ये एक प्लास्टिक का एक लगा हुआ है, ये डिवाइडर है। ये चार स्प्लाइस एसेस के होते हैं और ये डिवाइडर है। ये चार पेयर इसको एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी 6 का केबल है। और कैटेगरी 6 STP जो होता है ना, वो इन चारों तार के ऊपर एक फॉइल लगा हुआ होता है। और ये जो कैटेगरी 7 ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो कैटेगरी 6 है ना, देखिए इसके अंदर ये फॉइल है, ठीक है। पर ये देख रहे हैं आप, कैटेगरी 6 इसके हर पेयर के ऊपर फॉइल है। प्रॉब्लम ये है कि कॉपर की लिमिटेशन है। आप भले ना उसको जितना भी चमका लें, उसको जितना भी पॉलिश कर लें, वो एक स्पीड से ज़्यादा जाने वाली नहीं है अनलेस आप फाइबर ऑप्टिक चलाएं। अब ये कैटेगरी 7 के केबल इज फॉल्स इन दैट कैटेगरी। ये एक्सपेंसिव है केबल बहुत, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, स्पेशली घर के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप कैट 6 लगाएं, आप 10 GB ले सकते हैं घर के अंदर। सो दैट्स द आइडिया। अब यहाँ पे सी इफ दे हैव STP हियर, ये ऐसा है ना, देखिए डिवीजन है उसके अंदर। और Cat 6 STP cable, let's see. Yep, this is the one right here. You see, ये फॉइल जो है इन चारों को कवर करती है। तो ये है STP Cat 6 केबल, ठीक है ना। So that's the difference. चलें, we're gonna go back to the PDF.
ओके चलिए ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, एग्जाम में काम आएगा. CompTIA many others usually shortens the word category to cat. जैसे कैट मैंने बोला कैट 5 कैट 6 कैट बोलते हैं, तो ये शायद उसके अंदर आएगा एग्जाम में. कैटेगरी इसका फुल फॉर्म इज कैटेगरी. कैट 5E मींस कैटेगरी 5E, कैट 6A और कैट 6 मींस कैटेगरी 6A और जस्ट कैटेगरी 6. The standard maximum transmission distance for UTP is 100 meters, 328 feet. Do note, however, that if you want to run 10G base T over category 6, you won't get that much distance, about 55 meters under ideal conditions. So 10GB आपको चाहिए तो it's better कि आप 50 feet 100 feet के अंदर ही रखें, then you're good. 55 meter के अंदर आपको you'll probably get that. Twisted pair cabling uses a connector type called RJ. That's where the RJ45 comes from. And you probably are familiar with the RJ11 and RJ45. RJ11 is used for phone line के अंदर ये RJ11 होती है used. Internet line के अंदर होती है RJ45 used. Okay. In almost every case, UTP uses RJ connectors. Crimper is used to attach an RJ connector to a cable. Higher quality crimping tools have interchangeable dies for both types of connectors. Okay. क्रिम्पर्स का डिस्कस. ये क्रिम्पर्स आते हैं वायर्स को बनाने के लिए. जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो वायर रन करते हैं वो प्री मेड वायर नहीं होते, वो वायर के रोल्स आते हैं, तो इसको काट करके क्रिम्प करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं. उसकी एक मशीन आती है, मशीन ही आती है, एक टूल आता है. ये आपके होगा ये कनेक्टर्स हैं. ये राइट के ऊपर जो है वो है RJ45 और लेफ्ट के ऊपर जो है वो है RJ11. ठीक है. ठीक है, हमने स्किप दैट, हमने कवर कर लिया है. वायरिंग स्टैंडर्ड्स. हमें शायद एक्चुअली यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा बिकॉज 3 बजने वाले हैं. वी हैव टू स्टॉप हियर. सो फ्रॉम पेज नंबर 507 इज आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं सो देन आई विल पोस्ट, मैं एक दूसरा लिंक लाइव फीड का पोस्ट करूँगा, तो आप वो यहाँ से उसकी कंटिन्यूएशन देख सकेंगे. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो मैं दोनों वीडियो को कंबाइन करके एक में डाल दूंगा, तो आपको बेसिकली पता नहीं चलेगा कि वो कंटिन्यूएशन खुद ही हो जाएगी. ठीक है. सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन. मैं न्यू टाइमिंग्स भी पोस्ट कर दूंगा अबाउट अस पेज में, एंड यू गाइस कैन ज्वाइन ऑनलाइन और इन पर्सन. एंड कोई भी क्वेश्चंस हो feel free to ask in a chat, comment पे डाल दें, या नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे लाइव पूछ सकते हैं. ओके, अस्सलाम वालेकुम. हम ये CompTIA A+ ट्रेनिंग का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका कंटिन्यूएशन करेंगे पेज नंबर 507 से. लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 507 के ऊपर लेफ्ट ऑफ किया था. यहाँ तक हमने छोड़ा था. इसके अंदर हम नेटवर्किंग और नेटवर्क के वायर के बारे में बात करेंगे. ओके, तो वायरिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिकली वायरिंग स्टैंडर्ड्स जो ईथर कंप्यूटर के होते हैं, नेटवर्क के, वो क्या होते हैं. इसको मैं शॉर्ट वर्जन आपको कर देता हूँ. ठीक है ना. RJ45 इज अ कनेक्टर होता है. इसके अंदर ईथरनेट केबल जाती है. जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है वो डेवलप हुए हैं दो, 568A एंड 568B. ये इसका मतलब क्या है? 568 एंड 568B इज अ वे टू क्रिम्प द केबल. क्रिम्प मीन्स कि वो
वायर को कैसे ट्विस्ट करके उस RJ45 के अंदर कनेक्ट किया हुआ है। नीचे और उसकी एग्जांपल हम बताएंगे। तो उसके अंदर जैसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन होती थी उसके अंदर यूजुअली जो है टू पेयर्स वो मैच करते थे टू पिन 1 2 3 एंड 6 और बाकी जो वायर थे दे वर नॉट यूज्ड। लेकिन अब जो नई एप्लीकेशंस आ रही है जैसे वॉइप फोन्स होते हैं, वॉइस ओवर आईपी और मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आजकल गीगाबिट ईथरनेट कनेक्शन आते हैं, वो दे यूज ऑल 4 पेयर्स विच मीन्स वो सारे 8 के 8 वायर्स जो होते हैं ये कैट 5E या कैट 6 केबल के अंदर वो सारे के सारे वायर वो लोग यूटिलाइज करते हैं। नाउ इफ यू आर क्रिएटिंग ए नेटवर्क पैच केबल, जैसे कि मैंने कहा आप 568A या 568B यूज कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों एंड वायर के दोनों एंड सेम क्रिम्पिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट होना चाहिए। अगर वन एंड आपका 568A है और दूसरा एंड 568B है, then you're not gonna have a proper network connectivity. यहाँ पे इन्होंने पिक्चर शो की है, this is 568A. इन्होंने खाली कलर्स लिखे हुए हैं, so this makes it really hard, but मैं आपको इसको excuse me, पिक्चर में कलर में बताता हूँ, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। छोटी है ये पिक्चर, वैसे बिल्कुल गुड दुरुस्त है, बट मैं कोई बड़ी पिक्चर मुझे मिल जाए, समथिंग मे बी लाइक ओके दिस इज आई थिंक दिस इज बेटर। चलें जी ठीक है, ये जो 568A है मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये लेफ्ट के ऊपर जो है वो है 568A, लेफ्ट एक्चुअली दोनों 568 है, वी गोना गेट टू 568B। इसके अंदर आप कलर कोडिंग देखें, जो पहला वायर उन्होंने यूज किया हुआ है नंबर 1 पे वो है वाइट एंड ग्रीन, सेकंड के ऊपर है फुल ग्रीन, ठीक है, थर्ड के ऊपर है वाइट एंड ऑरेंज, ठीक है। ये कलर कोडिंग बहुत याद रखने की है, इसके बगैर आप अगर आप क्रिम करोगे तो वो कनेक्टर आपका चलेगा ही नहीं। लाइन वायर नंबर 4 इज ऑल ब्लू, wire number 5 is white and blue, wire number 6 is full orange, 7 is white and brown, and 8 is white and full brown as well. ये configuration 568A की है, ठीक है। जैसे ही आप 568B देखेंगे तो उसके अंदर ये जो शुरू के जो वायर्स है ना वो आगे पीछे होते हैं, बट जो लास्ट के वायर्स हैं most likely they will remain the same. So let's see if we can do a side by side comparison for that. ये है लेफ्ट के ऊपर जो है वो है 568A. Let me see if I can zoom it. फाइव सिक्स एट ए आप देख सकते हैं, ग्रीन एंड वाइट, ग्रीन, ऑरेंज एंड वाइट, ब्लू, ब्लू एंड वाइट, ऑरेंज, ब्राउन एंड वाइट एंड ब्राउन। ये 568A हो गया। 568B आप देखें उसके अंदर पहले ऑरेंज एंड वाइट आता है, फिर ऑरेंज आता है, उसके बाद ग्रीन एंड वाइट आता है, देन ब्लू एंड वाइट, फुल ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट एंड ब्राउन। आप नोट करें ब्राउन एंड वाइट एंड ब्राउन जो है लास्ट के दो केबल वो 568A और B में दोनों सेम है, बट एवरीथिंग एल्स मोस्टली इज डिफरेंट। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो पिन नंबर 4 है वो भी दोनों में सेम है, पिन नंबर 5 जो है वो भी दोनों में सेम है। तो ये जो पिन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 जैसे उन्होंने उसमें बात की वो
इन दोनों केबल के अंदर अलग है, ठीक है। तो ये लोग डॉक्यूमेंट में यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कलर शो नहीं किया, कलर शो करते तो ज़्यादा इजी हो जाता, बट दे रोट द नेम ऑफ द कलर, सही ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, 568 ये वाली डायग्राम 568A की है, और जो नेक्स्ट डायग्राम अभी आएगी वो 568B की है। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जो आपको अगर आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर से, या तो आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को हब से या स्विच से, तो आपको ये क्रॉस ओवर केबल चाहिए होगी, जो हमने अभी ऊपर बात की। ये क्रॉस ओवर केबल के अंदर पिन नंबर, जैसे मैंने बोला, पिन 1 to 3 and pin 2 to 6 are crossed on one side of the cable only। जैसे हमने ऊपर देखा, ये केबल क्रॉस होती है, इसमें आपको दिखेगा नहीं शायद, वो एक्चुअली इसमें भी देखना मुश्किल है, बट बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज, ये कहाँ गया, ये देख रहे हैं, देखिए ब्लू क्रॉस ओवर हो रही है इधर, और ये देख रहे हैं आप, ऑरेंज भी क्रॉस ओवर हो रही है, ठीक है ना। तो द सेम थिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज पिन 1 to 3 एंड पिन 2 to 6 आर क्रॉस्ड ओवर ऑन वन साइड ऑफ द केबल, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो पिन्स मैच होती है, वन पिन जो साइड जो मैच होती है वो सेंड का डेटा सेंड करती है, और जो दूसरी साइड की जो पिन मैच होती है वो वहां से रिसीव, बेसिकली वो वापस ट्रैफिक जो होता है वो रिसीव करता है। ये उसी की डायग्राम है जो मैंने आपको पहले शो कर चुका हूं। अब ये जो है डिपेंड करता है कंपनी के हिसाब से कि कंपनी कौन से स्टैंडर्ड यूज करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 568B जो है दैट्स अ वेरी कॉमन स्टैंडर्ड यूज्ड अमंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज। जो नेटवर्क केबल गाय होते हैं, केबल इंस्टॉलर्स, वो अमूमन यही 568B का स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जो कि ये वाली केबल है, और which is the right side, ओके। ये बहुत कॉमनली यूज होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर घर में आपके पास ये RJ45 के कनेक्टर्स हों, आप ट्राई करें इसको। इसकी आपको क्रिम्पिंग का एक टूल चाहिए होगा, वो मैं बताता हूँ। वो आप ईबे से भी उठा सकते हैं, एक्चुअली अमेजोन से भी उठा सकते हैं। ये वाला टूल नहीं है, आई मीन यू कैन यूज दिस टू, बट मैं एक टूल आता है उसके अंदर वो लोग मशीन भी देते हैं, जैसे कि ये जो है ना, ये वाली अच्छी है। ठीक है, तो ये जो टॉप वाली है इसके अंदर से आप क्रिम कर सकेंगे। ये मशीन भी देते हैं, इसके अंदर आप वायर को टेस्ट करते हैं कि वो वायर की कंटिन्यूटी है कि नहीं, और उसके अंदर ये थैली के अंदर वो छोटे छोटे RJ45 के कनेक्टर्स भी दिए होते हैं। सो इस पूरी किट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू गेट दिस, इट्स रियली हेल्पफुल। 2-3 ट्राई करें आप, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जस्ट गिव मी drop me a message or comment and I will be more than happy to assist you with that, okay? So ये RJ45 के wires को crimp करना, it's not that expensive. It's somewhat of a tedious job. Yes, it's a tedious job, but it's not expensive to do it. पर ये जो next section में हम जा रहे हैं, fiber optic, हम ये घर पे crimp कर सकते हैं, but इसकी machines बहुत expensive होती हैं. So let's go over it and then we will discover that, okay? So the fiber optic cabling has been called one of the best advances in the cabling. It consists of a thin, flexible glass or plastic fiber surrounded by rubberized outer coating. It provides transmission speeds from 100 megs to 10 gigs bytes per second, and a maximum distance of several miles, because it uses pulses of light instead of electrical voltages to transmit data. It is immune to electrical interference and to wiretapping.
तो फाइबर ऑप्टिक आई थिंक मैंने पहले भी बात की थी, इसके अंदर ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस केबल अब तक इन्होंने इजाद की है। इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, क्वालिटीज़ आती हैं एक्चुअली। यहाँ पे उन्होंने बताया एक फ्लेक्सिबल ग्लास और प्लास्टिक फाइबर ग्लास होता है, जो सराउंडेड उसके होता है एक रबराइज आउटर कोटिंग, एक रबर की कोटिंग लगी हुई होती है, और उसकी जो स्पीड होती है अप टू 10 gigs आपको दे सकती है। देयर आर अदर फाइबर ऑप्टिक केबल विद द SFP पोर्ट्स कैन गिव यू अप टू 100 gigs। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस होते हैं, स्पेशली अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड HBO Max, और जो बिकॉज दे स्ट्रीम लॉट ऑफ वीडियोस, उनको दे नीड इवन मोर देन 10 gigs per second, right? So they use 100 gigs fiber optic connectors with SFP की बात मैं बाद में करूँगा। तो फाइबर ऑप्टिक जो है बेसिकली एक लाइट की पल्सेस होती है, पल्स होती है ना, जैसे लाइक ब्लिंकिंग, आप समझे ना, लाइट वो ब्लिंक कर करके उसको एक सिग्नल सेंड करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और द इंटरफेरेंस और एनी वायर टैपिंग जो होती है, उसके इंटरफेरेंस से वो इम्यून है। कॉपर के अंदर क्या है प्रॉब्लम कि अगर आप कॉपर किसी इलेक्ट्रिकल वायर के साथ में रन करेंगे ना, तो आपकी स्पीड ड्रॉप हो जाएगी। पर फाइबर में ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसमें कॉपर नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक इन देयर। तो फाइबर अगर आप इलेक्ट्रिक के साथ भी रन करेंगे, इट्स नॉट गोना रियली क्रिएट मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर द स्पीड। ये आपकी फाइबर केबल है। एक्सक्यूज मी। इसके अंदर काफ़ी अलग अलग छोटी छोटी केबल्स हैं, जो सबसे जो थिन जो केबल्स हैं, ये अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, ये फाइबर ग्लास के स्ट्रैंड्स हैं। इसके अंदर कोई वायर नहीं होता है, ये लिटरली इट्स अ पीस ऑफ ग्लास इनसाइड, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट थ्रू फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ठीक है ना। फाइबर ऑप्टिक केबल इज स्टिल नॉट एज पॉपुलर एज UTP फॉर लोकल एरिया नेटवर्क्स बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो लोकल नेटवर्क के अंदर होते हैं, काफ़ी कंपनीज दे डोंट यूज फाइबर ऑप्टिक बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, यू नो, दे आर नॉट चीप। एंड बिग एंटरप्राइजेज, या दे डेफिनेटली यूज इट, वो अपने लोकल एरिया में भी यूज करते हैं। अगेन सेम थिंग, उसका ट्रांसमिशन जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये फाइबर ऑप्टिक के जाल बेसिकली समंदर के अंदर बिछे हुए हैं, जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ये फाइबर ऑप्टिक के ही केबल समंदर के अंदर से जा रहे होते हैं। अभी मुझे अमेरिका के अंदर से किसी को सिग्नल भेजना हो यूरोप के अंदर, जो इतना स्पीड जो कनेक्शन जाता है वो फाइबर के थ्रू जाता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हम कोई वेबसाइट ढूंढते हैं जो एम्स्टरडैम के अंदर हो। एम्स्टरडैम यूरोप के अंदर है। नेदरलैंड्स, ओके। ये रही government.nl, NL मीन्स नेदरलैंड। आई नो फॉर श्योर कि ये जो वेबसाइट है नेदरलैंड्स के अंदर हो रही है, होस्टेड है, और समवेयर अराउंड देयर, राइट, बट इट्स नॉट इन US। अभी हम क्या करेंगे, हम सिग्नल भेजेंगे, सही है। हम सबसे पहले तो सिग्नल भेजेंगे गूगल को। गूगल क्या करेगा, जो भी नियर बाय सर्वर होगा मेरी लोकेशन से, वहाँ उस सर्वर को ये सिग्नल भेजेगा। और आप ये टाइम देख सकते हैं, 4 मिलीसेकेंड, 6 मिलीसेकेंड, 4 मिलीसेकेंड, 3 मिलीसेकेंड, ठीक है। इट्स विच इज फेयरली, यू नो, डिसेंट अमाउंट ऑफ रिप्लाई आई एम गेटिंग। अभी मैं पिंग करूंगा ये वेबसाइट को, जो कि नेदरलैंड में है। लेट्स सी इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या आता है, ठीक है ना। देखें, ये मिलीसेकेंड आप देख रहे हैं कितने ज्यादा है, 80, 79, 71, 77। बट कंपेयर टू कॉपर ये फिर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। और एंड अगेन दिस इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट नॉट बी दैट ग्रेट। प्राइवेट वेबसाइट आई एम प्रीटी श्योर वुड इवन बी मोर फास्टर। अभी यही चीज मैं, लेट्स से इफ आई कैन फाइंड अ सर्वर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर भी काफी जाल बिछे हुए हैं। ये रही india.gov.in. IN means this is Indian government. Well, not Indian government, but something hosted in India. Not government, but yeah. But the fact कि यहाँ पे .gov लिखा हुआ है, so I'm assuming कि ये भी Indian government की वेबसाइट होगी। तो हम यहाँ पे पिंग करते हैं।
अब ये जो ट्रैफिक जाएगा ये जाएगा यूएस से पूरा राउट होके इंडियन गवर्नमेंट के सर्वर पे। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, सो ये टाइम आउट हो रहा है। टाइम आउट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इंडियन gov.in है दे आर ब्लॉकिंग पिंग रिक्वेस्ट, ठीक है ना, वो लोग ब्लॉक कर रहे हैं पिंग रिक्वेस्ट। सो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अनदर website. There you go, I found another one which is the toprated.in. ठीक है, in usually means India, so let's try that. The toprated.in, इसका सिग्नल बहुत अच्छा आ रहा है। देखा, हमें ये फाइंड आउट करना है ये सर्वर हो सकता है नजदीक में हो, और मुझे पहले से पता चल रहा है कि ये जो आईपी मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे 104, मैंने अभी कहीं रिसर्च नहीं की है, पर ये जो आईपी आ रही है ये क्लाउडफ्लेयर की आईपी है, और इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। इट्स कॉल्ड बेसिकली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल व्हिच इज अ प्रॉक्सी। लेट्स टेक अ लुक एट इट। ओके, ये किस चीज़ की आईपी है? सबसे पहले हम देखते हैं ये जो आईपी है 104.2.136.183। ओके, इट्स नॉट शोइंग हियर, नो प्रॉब्लम। हम कॉपी करेंगे इसको, और हम जाएंगे ipinfo.io, वही आईपी हम इधर डालेंगे। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। देखा, ये आईपी डाली, इन्होंने बता दिया क्लाउडफ्लेयर। मैंने रिसर्च नहीं किया था, बट आई हैव बीन वर्किंग विद क्लाउडफ्लेयर फॉर सम टाइम, तो मुझे पता है ये यूजुअली ये वाली आईपी बिलोंग्स टू क्लाउडफ्लेयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इंडिया की वेबसाइट है, ये कैलिफोर्निया क्यों जा रही है? ठीक है ना, इंडिया क्यों नहीं जा रही? तो इसमें होता क्या है कि जो इंडिया की वेबसाइट है दे आर राउटिंग देयर ट्रैफिक फ्रॉम क्लाउडफ्लेयर। तो अगर मैं इसको राउट करूंगा, राउट का मकसद ये है कि मैं देखना चाहता हूं कि ये जो है ट्रैफिक मेरे इंटरनेट से निकल के कौन कौन से सर्वर में जाता है और कब जाके ये toprated.in को पहुंचता है। सो लेट्स सी। तो क्लाउडफ्लेयर का मकसद बेसिकली क्या है कि वो toprated.in है उसकी रियल आईपी को हाइड करता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मींस के ये वेबसाइट किसी प्रॉक्सी के पीछे छुपी हुई है ताकि कोई उसको अटैक ना कर सके। इसीलिए उसका जो रिस्पांस रेट है जब मैं पिंग करता हूं वो एक्चुअली ट्रैफिक इंडिया नहीं जा रहा है, वो ट्रैफिक जाता है कैलिफोर्निया। तभी आपने जो मिली सेकेंड देखे वो काफी कम थे, ठीक है ना। और फिर क्लाउडफ्लेयर उस ट्रैफिक को राउट करता है इंडियन सर्वर में। तो दिस इज कॉल्ड राउटिंग एंड दिस इज कॉल्ड डीएनएस फॉरवर्डिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। वो आगे जाके और नेटवर्किंग में डीप जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह वी विल कवर दैट। बट आप देख सकते हैं कि घर के जो मेरा जो मेन राउटर है वहां से निकल रहा है कनेक्शन, फिर ये वेराइजन की फर्स्ट नोड के अंदर जा रहा है, फिर वेराइजन के सेकंड नोड में जा रहा है। ये जो टाइम आउट हुआ है दिस इज मोस्ट लाइकली देयर वन ऑफ देयर फायरवॉल। फिर ये अलग अलग नोड्स के ऊपर से जाके इवेंचुअली इट गेट्स टू क्लाउडफ्लेयर आईपी। अब क्लाउडफ्लेयर बैकग्राउंड के अंदर उसको फॉरवर्ड करता है toprated.in के ऊपर। वो हम ट्रैफिक नहीं देख सकते बिकॉज इट इज बीइंग प्रॉक्सीड। तो हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए हैं यहाँ पे, बट आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक, कि फाइबर ऑप्टिक ने हाउ it changed the world and the communication between different countries, different continents, and it made it go really fast. ठीक है ना? Now, so the fiber optic cable comes in two varieties: single mode or multi-mode. The term mode refers to the bundles of light that enter the fiber optic cable. Single mode fiber SMF cable uses only a single mode of light to propagate through the fiber cable, whereas multi-mode fiber allows multiple modes of light to propagate simultaneously. In multi-mode optic cable, the light bounces off the cable walls as it travels through the cable, which causes the signal to weaken more quickly.
सिंपल है कॉन्सेप्ट इसके अंदर. जो सिंगल मोड फाइबर है वो सिंगल मोड ऑफ लाइट यूज करती है टू प्रोपोगेट थ्रू द केबल. एक सिंगल लाइट जाती है थ्रू द केबल. बट जो मल्टी मोड फाइबर जो है उसके अंदर से मल्टीपल लाइट्स प्रोपोगेट होती है. लेकिन वो जो तार की जो दीवार होती है ना, शीशे की तार होती है, उसके थ्रू जो लाइट जाती है वो मल्टीपल सिग्नल्स वो लोग भेजते हैं. दैट्स द रीजन व्हाई इट गेट्स वीकन क्विकली, ये मल्टी मोड फाइबर. But multi-mode fiber is most often used as a horizontal cable. It permits multiple modes of light to propagate through the cable, which shortens cable distance but delivers more available bandwidth. Devices that use MMF cable typically use light emitting diodes (LED) to generate the light that travels through the cable. However, lasers with multi-mode fiber optic cables are now being used in higher bandwidth network devices such as gigabit Ethernet. MMF can transmit up to 10 gigs for up to 550 meters. Technically speaking, जो multimode है ना, obviously इसकी speed काफी तेज है. After 550 meters, which is about 1800 feet, उसकी जो capacity है distance wise वो कम हो जाती है. But ये 1800 feet is already such a long distance to cover. Most buildings जो है आप इसी distance के अंदर you can do most of your networking. तो multi mode जो है it gets used quite often because of उसकी जो bandwidth capacity है ना, it's pretty high because of multiple multi modes, right? Multiple lights are going through the cable. But if you go, अगर आप 550 मीटर से और आगे रन करेंगे, then obviously उसका distance की वजह से उसके transmission जो rates होते हैं वो कम हो जाते हैं. But I highly unlikely, even in data centers, depending on कितना बड़ा data centers है. अगर आप किसी छोटी कंपनी का data center है which is hosting the data, which is actually renting a data center, then the 1804 feet is way more than enough. But अगर जैसे Google है और Amazon के data centers है, I'm pretty sure they would need bigger than 1800 feet because उनके data centers are humongous. You know, they're pretty huge. Now, the single mode fiber cable is commonly used as a backbone cable. It is also usually the cable type used in phone systems. Light travels through single mode fiber optic cable using only a single mode, meaning that it travels straight down the fiber and does not bounce off the cable walls. Because only a single mode of light travels through the cable, single mode fiber optic cable supports lower bandwidth at longer distance than does the multi-mode fiber optic cable. Devices that use single mode fiber optic cable typically use lasers to generate the light that travels through the cable. The SMF can transmit up to 10 gigs for up to 25 miles. Subject. तो up to 25 miles, because इसके अंदर एक ही लाइट जो है वो उस केबल के थ्रू ट्रांसमिट होती है. तो वो जब लाइट ट्रांसमिट होती है, मल्टीपल लाइट ट्रांसमिट नहीं होती है उस केबल के अंदर, तो जो शीशे की जो दीवार है उसके ऊपर अगर मल्टीपल लाइट ट्रांसमिट होती है तो वो बहुत सारी लाइट एक साथ जब ट्रांसमिट होती है तो वो दे बाउंस ऑफ the side of the walls of the cable, right? But अगर सिंगल लाइट पास होती है, so it does not bounce, because even if it bounces, it's still the same light. So technically speaking, theoretically, it can go up to 25 miles. But 25 miles is a good distance. अब ये लोग बोल रहे हैं कि it's usually used for a backbone, meaning कि जो main infrastructure होता है ना, let's say if I want to connect a campus to campus, you know, usually उसके अंदर different type of cable use होती है, but I'm just for explaining purpose. Campus means one building to another building. Let's say 10 माइल की दूरी के ऊपर है, which is a lot. 10 माइल चले 2 माइल लगा दें आप, 2 माइल की दूरी के ऊपर है. अगर आपको खाली जो मेन फर्स्ट कनेक्शन आपको यूज करना है, you can use this SMF cable, which is single mode fiber cable. And then once the signal reaches inside the building, then you can use MMF, multi-mode cable. सही ना?
बिकॉज दैट्स ऑल अंदर की बिल्डिंग के डिस्टेंसेस छोटे हैं, दो बिल्डिंग को कनेक्ट करने के डिस्टेंस बड़े हैं, सो यू कैन यूज दिस SMF cable. Even that gives you up to 10 gig. There are ways to duplicate this number to 20 gigs and 40 gigs, and you can double the cable. It's called aggregate. You can do that, but there are different ways to do these things, but we will inshallah cover that down the road. Now, so we have talked about several different types of cable, right? Now it's possible that you will be asked to know maximum distance and transmission speeds on the A+ exam. So 6.3 इसके अंदर ये summarize करता है the distances. ये 10 base वाली cables अब use नहीं होती है, you don't really have to worry about that, but I would say just glance over it before you go take the exam. But again, this is not being used as much. Cat 3 use नहीं होती है, Cat 5 use नहीं होती है, 100 base भी अब इतनी use नहीं हो रही है, there's no purpose for that. Cat 5 से start होती है, so let's start from here. So Ethernet specification, maximum speed, maximum distance, and its nodes, right? So Cat 5e can go up to 1000 base, which is 1 gig. 100 meters तक वो रन कर सकती है. अगर आप उससे ज़्यादा रन करेंगे तो उसकी जो स्पीड है will drop. ठीक है. 1 gigs जो है in higher uses 4 pairs. As मैंने ऊपर मेंशन किया, सारे के सारे जो 4 पेयर होते हैं वो सारे पेयर ये यूज करता है. Cat 6 and Cat 6A. ओके, ए के अंदर वो प्लास्टिक का डिवीजन होता है और एक एक वायर के ऊपर पन्नी लगी हुई होती है फॉइल की. दैट्स द ओनली डिफरेंस. बट the only difference here in Cat 6 and Cat 6A is the distance. Cat 6 जो है वो 55 मीटर तक जाता है खाली और up to 10 gigs of speed. आप जा सकते हैं, आप चाहे तो 100 मीटर भी रन कर सकते हैं Cat 6 केबल, पर वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी फिर. बट 6A अगर आप 100 मीटर्स तक जाएंगे वो आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट 10 GB रहनी चाहिए. Theoretical speed, these are not practical speeds. Okay, just I wanna confirm that, just make sure that you guys understand that these are all theoretical speeds, they are not practical speeds. You will never see 10 gigs of speed running any traffic. Same with Cat 7, 100 meters. I don't even know. Yeah, as you can see, every wire is shielded. Cat 7 is, personally, I think it's a waste. आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है इसके अंदर. Cat 6A is a little bit cheaper than 7 and you're probably better off using that. ठीक है. MMF जो है आपकी फाइबर केबल होगी, मल्टी मोड, can go up to 550 meters 1 gig, और 300 मीटर अगर 500 उससे थोड़ा कम में जाओगे तो 10 GB तक वो ट्रांसमिट कर सकता है. SMF सिंगल मोड फाइबर केबल 40 किलोमीटर तक वो आपका 10 GB सपोर्ट करेगा. ओके, अगेन इसके डिफरेंट कनेक्टर्स आते हैं. आप RJ45 में इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि ये लोग अभी नीचे बात करेंगे इसके बारे में. ये कनेक्टर टाइप, ठीक है ना. So let's go and talk about that. So there are literally dozens of fiber optic connectors out there because it seemed that every producer wanted its proprietary design to become the standard. 3 of the most commonly used ones are ST, SC, and LC. So ST stands for straight tip fiber optic connector. Developed by AT&T, is probably the most widely used fiber optic connector. It uses a BNC attachment mechanism that makes connections and disconnections fairly easy. The ease of use of the ST is one of the attributes that make this connector so popular. अभी बहुत सारे फाइबर ऑप्टिक के बहुत सारे कनेक्टर्स हैं और डाउन द रोड जब आप सर्वर्स और 10 गिग स्विचेस के ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे वो SFP के कनेक्टर्स आएंगे, SFP के ट्रांसीवर्स आएंगे. वो सब कंपनी अपने अलग अलग बनाती हैं. आप सिस्को के SFP फोर्टिनेट में लगाएंगे नहीं चलेंगे, फोर्टिनेट के आप सिस्को में चलाएंगे नहीं चलेंगे. सब कंपनी अपने अपने खुद के बनाती है. पर ये जो 3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड वंस आर दीज. ST जो है वो AT&T ने डेवलप किया है और easily disconnect and connect होता है. That's the reason why it's a little bit more popular.
They look like these. Fairly simple, you know. आप इसको ये पीछे के सेक्शन को थोड़ा सा पुल करेंगे, it will come out. You can push it in and it will click in and you will hear and then वो click in हो जाएगा. ये जो BNC है एक्चुअली ये ट्विस्ट भी होता है. ये देख रहे हैं आप खड्डा जो बना हुआ है, तो जब आप अंदर घुसाएंगे उसके अंदर वो ट्विस्ट भी ट्विस्ट करना होता है. उसको आप ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पे आके वो लॉक हो जाएगा. ये BNC is pretty much the same as what जो सर्वेलेंस सिस्टम के कैमरेज होते हैं ना, उसमें भी ऐसे ही कनेक्टर्स होते हैं. ये आगे का नहीं बात कर रहा मैं, ये आगे का दीज आर light emitting connections. I'm only talking about the twist. Okay, now the next जो है it's called the subscriber connector, also sometimes known as a square connector. नीचे बताएंगे ये लोग. Now SCs are latched connectors, making it virtually impossible for you to pull out the connector without releasing its latch, using usually by pressing a button or release. SC works with either single mode or multi-mode optical fibers. They aren't as popular as ST connectors for LAN connections. इसके अंदर बाकायदा इन्होंने, अब देखें यहाँ पे ये जो साइड के अंदर वाइट दिया हुआ है ना, ये बेसिकली आपको इसको पीछे की तरफ पुल करेंगे तो ही वो निकलेगा. आप घुसाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा अच्छा, बट उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए उसको आपको ये वाइट को आपको दबाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, देन it will come out. So only for this reason it's not that common to use. ठीक है ना. और दूसरा इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि because of that, you know, वो ज़्यादातर LAN connections के अंदर यूज नहीं होते हैं. Excuse me. Last type जो है it's called LC, local connector, which was developed by Lucent Technologies. It is a mini form factor MFF connector, especially popular for use with fiber channel adapters, fast storage area networks and gigabit ethernet adapters, जो कि ऐसे लगते हैं. ये काफ़ी, these are also very commonly used in data centers. ये दो बटन आप दबाएंगे, नीचे दबाएंगे तो it will release the connector and then you can pull it out. ठीक है ना. These are fiber cables right here. ये सारी fiber cables है. इसके अंदर शीशा रन कर रहा है, you know, fiber glass रन कर रहा है basically. And then this इसके through light run होती है. ठीक है ना. There's no copper or anything inside. Now the prices of network cable differs dramatically between copper and fiber cable. हमें पता है ये बात because copper is a little bit cheaper compared to the fiber cable. Now exercise 6.1 asks you to investigate the difference for yourself. अब ये exercise को हम pass करेंगे. If need be, maybe we can come back to it later on. ठीक है. Networking components. Network cabling can link one computer to another, but most networks are far grander in scale than two simple machines. There are a variety of networking devices that provide connectivity to the network, make the network bigger, and offer auxiliary services to end users. In the following sections, we're going to classify additional networking components into two broad categories: connectivity devices and auxiliary devices. ठीक है. अगर ये थोड़ा मैं बता दूं आपको, बेसिकली बस ये लोग बोल रहे हैं कि यू नो नेटवर्क केबलिंग जो है कैन वो लिंक करता है कंप्यूटर को किसी भी और चीज़ से, नेटवर्क से करता है, किसी भी चीज़ से करता है. बट इसके अंदर दो कैटेगरीज, दो सेक्शंस हैं. इन्होंने बताया कि यू नो 2 कैटेगरीज हैं जो कनेक्टिविटी टू द डिवाइस एंड द ऑक्सिलरी डिवाइसेस. वो क्या है? लेट्स डिस्कस दैट. So we all know that if you want to be a part of a computer network, you need to attach to that network somehow. Using network cable is one of the option, but not everyone is in a position to just plug a cable in and go, right? So in addition, if you want to grow your network beyond a few simple connections, you need to use a special class of networking devices known as connectivity devices. These devices also allow communications to break the boundaries of local networks and really provide the backbone for nearly all network computers. So basically, they're talking about switches over here, but let's cover that more. There are several categories of connectivity devices. These connectivity devices make it possible for users to connect to networks and to lengthen networks to almost unlimited distances. We will now discuss that. So basically वो क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जो है, आपको अगर नेटवर्क में कनेक्ट करना है और उस नेटवर्क को ग्रो करना है, वो आपको कंप्यूटर को किसी केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि वो आप केबल कहीं पे भी कनेक्ट कर दें और आपका नेटवर्क स्टार्ट हो जाए. आपको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना पड़ेगा और उस नेटवर्क कंप्यूटर को किसी नेटवर्क डिवाइस से, कनेक्टिविटी डिवाइस उसको बोलते हैं, उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. फिर जाके
आप उस नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकेंगे। अब वो कौन से डिवाइसेस हैं, they should talk about it here. We're gonna actually modem is actually not used anymore, so we're gonna pass that. ये modem जो है ना, they're talking about fax modem at a rate of 56k. we're not using these days, so we're gonna pass that. ये वही डिवाइस है जो हम डायल अप टोन फोन से कनेक्ट करते थे, फोन की घंटी बजती थी, वेल नॉट घंटी बजती थी, वो डायल इन एंड आपकी फोन की लाइन ऑक्यूपाई हो जाती थी, ऑल योर डेटा वो ट्रांसमिट ओवर दी फोन लाइन. We don't use it these days, so we're gonna bypass that. Let me just double check, okay? Modems, हाँ ठीक है, पर यहाँ पे मोडेम का दूसरा पर्पस भी है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, जो कि कॉमकास्ट और एक्सफिनिटी के अंदर यूज होता है. एक्सेस पॉइंट जो है बेसिकली वो क्या है, अब मैं इजी तरीके से आपको बताना चाहता हूं. ये सब याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके ये सारे ही लव्स यूज होंगे, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइस रिमेंबर, जस्ट वर्ड्स थोड़ा याद रखिएगा अगर हो सके तो, ठीक है ना. ये मैंने काफी बड़ा बना दिया है, लेट्स डिलीट. Let's move it down here. Okay. और मुझे बनाना है, let's see, we can call this a router. ओके, अभी हमें चाहिए छोटे छोटे कंप्यूटर्स बना देते हैं यहाँ पे. 1 2 सही है, इस पे लिख देते हैं हम पीसी, इस पे आप लिख दें लैपटॉप, ओके. एक्सेस पॉइंट क्या है, तो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो मैं अभी बना देता हूँ, बट इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मोडेम, ओके, व्हाटएवर. बट मोडेम से कनेक्शन, फॉर एग्जांपल, एक्चुअली लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर, यू कैन यूज ग्रीन. मोडेम से एक वायर आता है आपके राउटर के अंदर, और आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो राउटर से आप डायरेक्टली okay, I'm very bad at paint, it seems like it, so I'm just gonna go straight lines. So let's say PC जो है आपका, वो आपने राउटर से डायरेक्टली वायर के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना. अब एक्सेस पॉइंट का क्या काम है, एक्सेस पॉइंट जो है ना, वो बेसिकली आपको देता है वायरलेस कनेक्शंस, which looks something like, let's hold on, ठीक है ना, एक तरह के वाईफाई सिग्नल्स हैं. और एक्सेस पॉइंट का काम ये है, आप क्या करेंगे कि एक्सेस पॉइंट को आप राउटर से एक वायर जाएगा आपके एक्सेस पॉइंट में, तो राउटर जो है एक्सेस पॉइंट को इंटरनेट दे देगा. राउटर एक्सेस पॉइंट को बोलेगा कि भाई जाओ तुम वायरलेसली, एक्सेस पॉइंट का काम है वायरलेस, कोई भी सिग्नल को, किसी भी वायर्ड सिग्नल को जो पीछे से कनेक्शन आ रहा है वायर के ऊपर, उसको वायरलेस के अंदर कन्वर्ट करने का, ये एक्सेस पॉइंट का काम है.
अब एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, ये जो वायर के ऊपर जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको वायरलेस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो लैपटॉप जो है ये जो लैपटॉप जो है ये एक सेकेंड, कहाँ गई मेरी ब्रश। लैपटॉप जो है वो बेसिकली सिग्नल मांग रहा होगा कि भाई मुझे वाईफाई के सिग्नल्स दो, वाईफाई के सिग्नल्स दो। तो लैपटॉप ये एक्सेस पॉइंट के सिग्नल्स के ऊपर वायरलेसली कनेक्ट होगा। तो ये कनेक्शन कैसे जाएगा, लैपटॉप से जाएगा। लेट्स सेलेक्ट अनदर कलर। तो वायरलेसली ये कनेक्शन लैपटॉप से जाएगा एक्सेस पॉइंट में, और वो एक्सेस पॉइंट उस कनेक्शन को फॉरवर्ड करेगा राउटर में, और वो राउटर उसको पास करेगा मोडेम में, और मोडेम से फिर वो जाएगा इंटरनेट में। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस पॉइंट। ठीक है, अभी नीचे इन्होंने दिया हुआ है रिपीटर्स एंड एक्सटेंडर्स। ओह, वन मोर थिंग आई वांट जस्ट मेंशन इट कि वायरलेस को जो टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड जो दे यूज इट्स कॉल्ड 802.11। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आई हैं ऑफ कोर्स, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, बट वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। बट जस्ट रिमेंबर दिस 802.11, दिस इज द टर्म फॉर द वायरलेस। ठीक है, अभी रिपीटर्स। Repeater is a small power device that receives signal and amplifies it. Okay. रिपीटर का क्या काम है? एवरीथिंग यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है विल रिमेन द सेम। ये कनेक्शन मुझे इधर बनाने दें आप, तो आपको पता चल जाए ये इधर जा रहा है। ठीक है, अब everything remains the same except let's remove this. Okay, now अब ये एक्सेस पॉइंट नहीं रहा, ये बन गया है। इसको हम बनाते हैं रिपीटर। अब रिपीटर बोले या एक्सटेंडर बोले, इट्स द सेम थिंग, पर्पस इज द सेम। ओके, इसका काम करने का तरीका सेम ही है। रिपीटर जो है बेसिकली राउटर इटसेल्फ, ओके, राउटर के अंदर से कहाँ गया मेरा ब्रश, के अंदर से वाईफाई के सिग्नल निकल रहे होते हैं। ठीक है, और रिपीटर जो है वो बोल रहा है, वो उसका काम दो चीज करने का है, राउटर से सिग्नल्स, वायरलेस सिग्नल्स लेने का, और दूसरी डिवाइसेस को वो सिग्नल देने का। ठीक है ना, ऐसा है। तो ये यहां से ले रहा है और यहां से पास ऑन कर रहा है। तो कनेक्टिविटी इसमें कैसे होती है, ये वाईफाई सिग्नल यहां पे कनेक्ट होते हैं ऐसे। सॉरी, मेरी पेन काम नहीं कर रही है लगता है, बट हाँ ठीक है। तो यहाँ पे और वही सिग्नल ये ओवर दी वायरलेस फेंकता है लैपटॉप को। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट बिटवीन द एक्सेस पॉइंट एंड रिपीटर। एक्सेस पॉइंट कैसे काम करता है, इट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू ए वायर इन द बैक, फिर उसके बाद वो वायरलेस के कनेक्शन आगे फेंकेगा। रिपीटर, उसको वायर की ज़रूरत नहीं है, उसको पीछे से आपको वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वायरलेस सिग्नल कैच करता है और वो उसी सिग्नल्स को आगे फेंकता है ताकि दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट हो सके। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। मेन बेनिफिट ये है कि यू डोंट नीड अ वायर, ऑब्वियसली इन रिपीटर यू डोंट नीड अ वायर, ईथरनेट वायर। प्रॉब्लम यह है कि इसकी स्पीड्स आर वेरी लिमिटेड, इसकी स्पीड्स आर नॉट ग्रेट, स्लो है, लेटेंसी आपको बहुत मिलेगी, थिंग्स लाइक दैट यू विल सी। एक्सेस पॉइंट ऑन द अदर वे हैज a very good speed, a decent speed, because
एक्सेस पॉइंट जो है वो इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर राउटर. वो हार्ड वायर होता है जब, तो वो आपके एक राउटर का हिस्सा बन जाता है. तो उसकी वजह से जितने भी सिग्नल्स जाते हैं, जो मतलब जाते नहीं, जितने भी सिग्नल्स एक्सेस पॉइंट को मिलते हैं वो वायर के थ्रू मिलते हैं, तो उसका कनेक्शन काफी तेज होता है कंपेयर टू रिपीटर. डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हम डिफरेंट इक्विपमेंट लगाते हैं. रिपीटर्स भी यूज होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स भी यूज होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि 60 मीटर्स लॉन्ग एंड यू नो, बट दिस इज रियली डिपेंड्स आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी दीवारों के थ्रू यू हैव टू गो थ्रू एंड ऑल दैट, यू नो. सो इट रियली डिपेंड्स हाउ फार यू आर. ठीक है, तो ये आप हमने कवर कर लिया रिपीटर्स एंड एक्सटेंडर्स एंड एक्सेस पॉइंट्स. नेक्स्ट इज हब्स. So the hub is a device used to link several computers together. Hubs are very simple devices that possesses no real intelligence. Hubs अब use नहीं होते हैं, just an FYI, okay? Hubs are like dumb products basically. वो as it says right here, you know, it's not a real intelligent product, right? So they simply repeat any signal that comes in on one port and copy it to the other port, a process that is also called broadcasting. You will sometimes hear them referred to as multi-port repeaters. They work at layer 1 of the OSI model and just as repeaters do. So there are two types of hub, active and passive. जैसे मैंने बोला, वो बेसिकली क्या करते हैं कि जितना ट्रैफिक आता है पीछे से वो लेता है और आगे सबको फेंक देता है, भले ने वो किसी ने वो रिक्वेस्ट किया हो कि नहीं किया हो, वो सबको दे देता है. That's why hubs are not feasible anymore in large environments, actually in any environments at this time. So there are two types of hubs, right? Active and passive. Passive hubs connect all ports together electrically but do not have their own power source. Active hubs use electronics to amplify and clean up the signal before it is broadcast to the other ports. Active hubs can therefore be used to extend the length of a cable, whereas passive hubs cannot. Real life में, I mean, you're better off using a switch. An unmanaged switch would also be probably considered an active hub. Basically, passive hub के अंदर क्या है कि there is no electrical ports. उसके अंदर जितना भी जो power source नहीं होती है उसके अंदर, तो जितना भी आप data Ethernet connect करते हैं, it just transmits to the other ports, which the signals are very noisy. So latency and less distance उसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलता है. जो एक्टिव हब्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं उनका सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए. तो उससे क्या होता है कि सिग्नल जो दूसरे पोर्ट्स तक जाता है वो क्लियर जाता है, विच मीन्स लेस लेटेंसी एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, पैच पैनल. Very simple example. This top one right here is a patch panel. Okay, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, then I'll give you a little bit more example. You'll understand what it is. A patch panel is essentially a large hub that is rack mounted. It houses multiple cable connections but possesses no network intelligence. Its sole purpose is to connect cable together. Short patch cables are used to plug in front panel connector, and they are longer, more permanent cable. Okay, चलें मैं इसको यहाँ पे आपको डिसाइड बताता हूँ. Let's see, where's my pictures? Right here. Patch panel. मुझे चाहिए एक खाली वाली पिक्चर फर्स्ट. चलें, ये अच्छी है पिक्चर, ये देख लें आप. ओके भाई, पैच पैनल इज नथिंग बट समथिंग विच कनेक्ट्स टू वायर्स टुगेदर. दैट्स ऑल इट इज. ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ना ब्लैक में, जो जिसके अंदर ये दो होल हैं और ये सारे पोर्ट्स, इथरनेट पोर्ट्स हैं, ये सारे 16, 17, 18, 19, 20, ये जो लिखा हुआ है ना सारा, ये इसको बोलते हैं पैच पैनल. ये है पैच पैनल. इसका फंक्शन क्या है? आप देख रहे हैं पीछे से वायर आ रहे हैं, वो वायर पोर्ट नंबर 24 में कनेक्ट है, एक काला वाला वायर, और आगे से पोर्ट नंबर 24 में एक दूसरा वायर कनेक्ट है. बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये ब्लैक वायर और ये व्हाइट वायर को मिला के एक सिंगल वायर बना रहा है. दैट्स ऑल इट्स डूइंग.
This is very commonly used. Patch panels are highly used in data centers, even in small businesses. ये आपको हर जगह में बेसिकली मिलेगा, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने नोट किया है काफ़ी जो न्यू लोग होते हैं उनको समझ नहीं पड़ती है कि कभी कभी, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वायर है, ये कभी कभी वो लोग देखेंगे कि दीवार के सीलिंग के अंदर से आ रहा होता है और वो इस पैच पैनल के अंदर चला जाता है। ये ब्लैक वाला हिस्सा जो है, ब्लैक वायर, वो ये पीछे से कनेक्ट हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि ये वायर इसके अंदर चला गया और इसका कलर चेंज हो गया है, अब ये वायर मुझे नहीं पता सेम है कि नहीं। सो पीपल गेट रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। नथिंग टू बी कंफ्यूज, आप खाली एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये खाली दो वायर को कनेक्ट कर रहा है, दैट्स ऑल इट्स डूइंग। ठीक है ना, बस आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, योर लाइफ विल बी होल लॉट इजियर। पर इसमें फायदा क्या है? लोग सोचेंगे भाई क्या हम क्यों लगाएं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट अदर देन एक्सटेंडिंग द केबल। इसका पर्पस देखें क्या है, विच मेक्स लाइफ होल लॉट इजियर फॉर नेटवर्किंग पीपल। अब आप पहले तो ये समझ लें कि ये जितने भी पीछे के जो वायर लगे हुए हैं, आप बस ये समझें कि ये सीलिंग के अंदर से आ रहे हैं, दीवार की सीलिंग के अंदर से ऊपर से आ रहे हैं और ये पीछे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, लेट मी सी, कोई अच्छी सी पिक्चर हो यहाँ पे। चलिए, लेट मी सी, नो दिस वन। यार इसके अंदर थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ, दिस इज गुड। आई होप आपको दिख रहा हो ये। एक्सक्यूज मी, ये ऊपर जो देख रहे हैं ये पैच पैनल है। ठीक है, इसके पीछे के वायर जो है आपको अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो हाइड कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्लैक केसिंग है ना पूरा, ये ब्लैक केसिंग के अंदर पीछे से अच्छी तरह से हम वायर को रन करते हैं और ये पीछे वायर हाइड हो जाते हैं। ये जितने भी पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 जितने भी सुराख दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके पीछे ईथरनेट वायर होते हैं। अब पर्पस क्या होता है कि हम देखें, आगे से दूसरा वायर कनेक्ट करके हम स्विच के अंदर लगा देते हैं। ये नीचे जो है आइदर स्विच होगा या फायरवॉल होगा या राउटर होगा या कुछ भी होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर से कनेक्ट किया और नीचे लगा दिया। ये इसको होता है कि दिस इज ईज ऑफ नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग इन द फ्यूचर। अब हम चाहते तो हमें ये पैच पैनल की ज़रूरत नहीं थी, हम चाहते पैच पैनल निकाल के जो ऊपर से जो पीछे से वायर आ रहे हैं वो ही डायरेक्ट स्विच में लगा दें। हम ऐसे भी कर सकते हैं, that's completely fine. The only issue with that is that this is more organized. ठीक है ना, this is more organized, this is more when you're doing troubleshooting, this makes life whole lot easier because हम एक एक पोर्ट को लेबल करते हैं। ट्रबल शूटिंग के दौरान हम एक एक पोर्ट को देख सकते हैं कि ये वायर कहाँ का है और कहाँ जा रहा है। तो दैट्स द रीजन व्हाई पैच पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंशाल्लाह अगर होगा तो मैं आपको लाइव पैच पैनल दिखाऊंगा अगर टाइम परमिट्स। Now we're going to go to the bridges, okay? So the bridge operates in the data link layer 2 of the OSI model. So they join similar topologies and they are used to divide network segments into multiple collision domains. Bridges isolate network traffic, preventing unwanted traffic from entering a segment when there are no recipients on that segment. For example, with 100 people on one Ethernet segment, performance will be mediocre because of the design of the Ethernet and the number of workstations that are fighting to transmit. If you use a bridge to divide the segment into two segments of workstation, the traffic will be much lower on either side and performance will improve. Bridges are not able to distinguish one protocol from another because high levels of the OSI model are not available to them. If a bridge is aware of the destination MAC address, it can forward packets to the correct segment. Otherwise, it forwards the packets to all segments. Bridges के actually multiple purposes होते हैं। इसके अंदर it works on a layer 2 in the OSI model, ठीक है। ब्रिज जो है आइसोलेट कर देता है ट्रैफिक को। आप इसको समझ लें एज अ लोड बैलेंसिंग। जैसे मैं एक ईथरनेट कनेक्शन 100 लोगों को
एक ईथरनेट कनेक्शन में अगर 100 लोगों के स्विच के थ्रू करता हूँ ट्रांसमिट, तो वो थोड़ा नेटवर्क थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा, दैट विल बी अ डिग्रेडेड नेटवर्क। पर अगर उसी 100 कनेक्शंस को मैं 2 डिवाइसेस में डिवाइड कर देता हूँ, सो देन इट विल लोड बैलेंस, it's not really a load balance, it's active locations type thing, but वो उसका डिवाइड कर देगा लोड, ठीक है ना। सो समवॉट ऑफ अ लोड बैलेंस, बट दोनों 150 यूजर्स यहाँ पे 50 यूजर्स यहाँ पे, उनको गुड अमाउंट ऑफ स्पीड मिल जाएगी। जो bridges है, obviously they are just taking packets and moving forward, that's all they're doing. They don't know, they're not able to distinguish one protocol from the other, because they work on a layer 2 link layer. Okay, now bridges are more intelligent than repeaters, but they are unable to move data across multiple networks simultaneously. The repeaters से ज़्यादा intelligent होते हैं bridges, because it is connected to the router. But the main disadvantage of bridges is that they forward broadcast packets. Broadcasts are addressed to all computers, so the bridge just does its job and forwards the packet. वो सारे पैकेट्स लेता है और सबको फॉरवर्ड कर देता है. So bridges also cannot perform intelligent path selection. वो somewhat, as I said, bridges थोड़े स्मार्ट होते हैं रिपीटर से, बट इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि वो डिटरमिन कर सकें कि ये जो पैकेट मुझे पीछे से आया है वो किसको फॉरवर्ड करूं. वो सबको फॉरवर्ड करते हैं, जिसने भी एक्सेप्ट किया they get the packet, the rest is dropped. Not much used. इंशाल्लाह आगे जाके ये लोग वायरलेस ब्रिज की बात करेंगे. ये ब्रिज है, it's not that much used, but anyway, wireless bridge आएगा hopefully, and we will talk about that, and I will explain that to you in detail, because wireless bridge is something to know about. Okay, now switches work at layer 2 as do bridges. Now switches के अंदर okay, they have not mentioned it, but स्विचेस जो है 2 किस्म की आती है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है. ये जो स्विच इन्होंने बताई है वर्क्स ऑन लेयर 2 इन दी OSI मॉडल, ठीक है ना. उसका काम, विच मींस दे आर नॉट स्मार्ट आल्सो, दे विल टेक द इंफॉर्मेशन, पास इट फॉरवर्ड. लेयर 3 स्विचेस भी आती हैं, दे आर कॉल्ड मैनेज स्विच. वेल, लेयर 2 की भी स्विच आती है मैनेज, बट लेयर 3 स्विचेस यू कैन डू राउटिंग इन इट. इंशाल्लाह आगे जाके कवर करेंगे, बट बस आप अभी दिमाग में ये सेट कर लें कि स्विचेस के अंदर सिर्फ लेयर 2 नहीं है, स्विचेस के अंदर लेयर 3 भी आती है, ठीक है. वो आगे जाके हम कवर करेंगे. नाउ स्विचेस वर्क एट लेयर 2 एज डू ब्रिजेस, एंड दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी जस्ट लाइक हब्स. दे ऑफन लुक सिमिलर टू हब्स. हब जो होते हैं वैसे ही लगते हैं, एंड बहुत लोग उसको कंफ्यूज भी हो जाते हैं उसके अंदर. There are big performance differences though. Hubs pass along all traffic, but switches examine the layer 2 header of the incoming packets and forward it properly to the right port and only that port. So switch जो है थोड़ी और smart हो गई है. Hubs मैंने इसीलिए बोला, अब तो कोई यूज ही नहीं करता hub, because they really switches are so inexpensive के सब switches यूज करते हैं for most of these purposes, because वो smart है. Switches are smart. पीछे से जो ट्रैफिक आता है उसका जो हेडर का इंफॉर्मेशन होता है उस पैकेट के अंदर, वो उसको एग्जामिन करता है और देखता है कि ये जो हेडर के इंफॉर्मेशन के अंदर देखता है कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है कौन से कंप्यूटर को मुझे भेजना है. तो स्विच उस हिसाब से स्मार्ट है, उसको पता है, वो एग्जामिन करता है कि मुझे कहाँ भेजना है, और वो सिर्फ उसी पोर्ट के अंदर उस ट्रैफिक को भेजता है, वो सब जगह नहीं भेजता है. तो उसकी वजह से काफी उसका लोड कम हो जाता है, ठीक है ना. दिस ग्रेटली रिड्यूसेस ओवरहेड एंड thus improves the performance because there is essentially a virtual connection between the sender and the receiver, ठीक है ना. तो जब वो पहला पैकेट भेजता है, देन वो बाय डायरेक्शनल उनका कनेक्शन हो जाता है. सो सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो खाली उसी पोर्ट के दरमियान होती है. अगर 16 पोर्ट स्विच है, जो 15 पोर्ट है, उन 15 पोर्ट को वो इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, सिर्फ वो जिस पोर्ट से कनेक्टेड है या जिस पोर्ट को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उसी पोर्ट के अंदर वो इंफॉर्मेशन भेजता है. तो उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है और उसका लोड कम हो जाता है. Nearly every hub or switch that you will see has one or more status indicator light. If there is a connection to a port of the switch, a light either above the connector or LED panel elsewhere on the will light up.
If traffic is crossing the port, the light may flash, or there may be a secondary light that will light up. Many devices can also detect a problem in the connection. If a problem connection produces a green light, a bad connection might produce an amber light. Usually, अब तो ये बहुत काफी चेंज हो गया है. Amber light जो होती है, switch, hopefully इसके अंदर आ जाए. No. अमूमन ये ग्रीन लाइट दिख रही है आपको, ये ग्रीन लाइट है, ठीक है ना. ग्रीन लाइट अब जो है बेसिकली यूजुअली इट मींस दैट दिस इज लाइव कनेक्शन. लाइव इन अ सेंस कि एक एंड के ऊपर कुछ लगा हुआ है और दूसरे एंड के ऊपर कुछ और लगा हुआ है, और कुछ उसमें कनेक्शन जो है पास हो रहा है. अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इंटरनेट चल रहा है. काफी लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं. जस्ट बिकॉज दे सी अ लाइट वो समझते हैं कि इंटरनेट चल रहा है. नो, दैट्स नॉट राइट. लाइट का मतलब ये है कि भाई एक जगह पे तार लगा हुआ है और दूसरी जगह पे जो तार लगा हुआ है उसके पीछे कोई डिवाइस लगी हुई है, और वो डिवाइस की कंटिन्यूटी, मीनिंग कि उसका पूरा सर्कल पूरा हो रहा है. एक जगह एक एंड से कनेक्शन जा रहा है, दूसरे से आ रहा है, बट इंटरनेट नहीं चल रहा है. दैट्स नॉट गारंटीड. ओके. अब ग्रीन लाइट यूजुअली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो ये शो करता है कि इसका जो कनेक्शन है इज अबाउट 1000 मेग्स पर बिट्स पर सेकेंड और 1 गिग. ठीक है. एम्बर लाइट जो यहाँ पे ये लोग रिफर कर रहे हैं पीडीएफ के अंदर, वो बोल रहे हैं कि कुछ एरर हो जाता है. एरर हो तो उसके अंदर शो करता है, एंड इट ऑल्सो शोज अंडर 100 मैग्स पर मेगाबाइट बिट्स पर सेकेंड के कनेक्शन में. जो लोअर कनेक्शन होता है ना उसमें एम्बर शो करता है यूजुअली. यहाँ पे नहीं है, बट वी कैन होपफुली दे हैव पिक्चर्स डाउन हियर. और जब वो लाइट ब्लिंक करती है ना, विच मीन्स द कनेक्शन इज एक्चुअली कुछ ट्रैफिक उसके थ्रू जा रहा है. जब वो क्विकली ब्लिंक करेगी ना ग्रीन के अंदर, तो दैट मीन्स दैट सम कनेक्शन इज गोइंग थ्रू. कभी एम्बर के अंदर भी ब्लिंक करेगी, इट मीन्स कनेक्शन इज गोइंग थ्रू. इफ इट्स जस्ट एम्बर लाइट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट, लाइक स्टेडी एम्बर लाइट. ठीक है. वो आप थोड़ा देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ राउटर्स आर हाईली इंटेलिजेंट डिवाइसेस. राउटर्स आर आल्सो कंसिडर्ड गेटवेज. ओके. Now, that connect multiple network types and determine the best path for sending data. They can route packets across multiple networks and use routing tables to store network addresses to determine the best destination. Routers operate at network layer 3 of the OSI model. Because of this, they make their decision on what to do with traffic based on logical addresses such as an IP address. Router जो है वो they are the most intelligent devices compared to जो हमने ऊपर पढ़ा. ये उनसे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है. इसके अंदर राउटिंग टेबल सेट हुए हुए होते हैं जो डिटरमिन करता है कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है. मीनिंग पाथ क्या है, ये है जो हमने जो ये किया था, ये पाथ है. देखें ये पूरा जो हम ये ना यहाँ से लेके ये पूरा पाथ है कि कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन से सर्वर के ऊपर या कौन से नोड के ऊपर मैं जाऊं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कहाँ से मैं जल्दी पहुंच जाऊं. ये उसका काम है, ये राउटर डिसाइड करता है. ठीक है ना. नॉट एट दिस लेवल. ये तो एक्सटर्नल नेटवर्क है, बट आई कैन नॉट रियली शो यू ऑन माई नेटवर्क बिकॉज मेरा नेटवर्क इट्स वेरी गोना बी स्मॉल. सो इसके अंदर मैं इवन इफ आई वर टू डू, it's just gonna show you one hop, so it's not really gonna be helpful. But anyway, just remember routers are a little bit more intelligent. Okay, so because of this they make their decisions based on the IPs. Okay, so routers have few key functions. They connect multiple networks to each other, which none of the other devices we have discussed do. Switches, hubs, repeater, access point, they don't do all that. Routers जो है वो multiple networks को connect करता है. ठीक है. Routers do not forward broadcasts. Switches and bridges break up collision domains, whereas router break up broadcast domains. ठीक है ना. Excuse me. Router जो है वो
ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करता है, जैसे जैसे ये स्विचेस और सब करते हैं। Whereas राउटर जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। Routers are normally used to connect one LAN to other. Typically, when a WAN is set up, at least 2 routers are used. This really depends on how your configuration is, but जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी ना, यही कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली राउटर है, आप राउटर के साथ स्विच कनेक्ट कर सकते हैं या राउटर से डायरेक्टली आप पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर 4 पोर्ट दिए हुए होते हैं यूजुअली, तो आप डायरेक्ट पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यू नो, सो दैट्स फाइन आइदर वे। थोड़े लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर जो वायरलेस राउटर है दे इतने एडवांस हो गए हैं कि यू नो उनके अंदर इतनी सारी फंक्शनैलिटीज आ गई है कि कंपेयर टू बिफोर, यू नो, दे आर वे मोर एडवांस दीस डेज। चैप्टर 8 के अंदर हम और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बट जो मैंने आपको अभी पेंट के अंदर बताया, दैट्स आई थिंक ऑलरेडी आई एक्सप्लेन टू मच, बट अगर कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। आई नो आई थिंक सब लोगों को कंफ्यूजन होगी उसकी, बट इंशाल्लाह चैप्टर 8 के अंदर वी विल कवर दैट इन डिटेल, ठीक है। ऑक्सिलरी डिवाइसेस, द डिवाइसेस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोवाइड connectivity. This next group of devices adds in features outside of connectivity that can help network users, specifically by protecting them from malicious attacks, providing network connections over power lines, and providing power over Ethernet cables, which is PoE, power over Ethernet, okay? A firewall is a hardware or software solution that serves as your network security guard. They are probably the most important device on the network that are connected to the internet. Firewalls can protect you in 2 ways. They protect your network resources from hackers lurking in the dark corners on the internet, and they can simultaneously prevent computers on your network from accessing undesirable content of the internet. Firewall जो है basically is one of the most important thing, okay? वो हार्डवेयर की फॉर्म के अंदर आता है और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी आता है। सॉफ्टवेयर की फॉर्म जो होता है वो वर्चुअल कहते हैं हम, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल फायरवॉल्स। आगे जाके मैं इसको प्रैक्टिकल में आएंगे हम, तब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा। पर हार्डवेयर फॉर्म का मतलब ये है कि वो एक डिवाइस होता है, हार्डवेयर बेसिकली, दैट्स ऑल, ठीक है। काफी लोग फायरवॉल, राउटर, गेटवे सब एक के अंदर बिल्ट इन होता है, ऐसे भी यूज करते हैं, ओके। उसका फायदा क्या है कि भाई ये आपको ऑब्वियसली आपके जो पूरे नेटवर्क को है हैकर से बचाता है। खराब जो वेबसाइट होती है, dark web, you know, there are certain types of webs, you know, you should never be on, or certain websites, आप उस websites के ऊपर जाएं, they will collect your data, and you know, phishing websites होती है, a lot of things. Firewall can protect you that. मैं ये नहीं कह रहा कि firewall will 100% protect you. No, there is no such thing as 100% security. That will never happen. It's always 99 point something, whatever, you know. But firewall greatly reduces your risks to be compromised from hackers or phishing scams or whatever, okay. At a basic level, firewall filter packets based on rules defined by the network administrator. उसके अंदर आप rules बनाते हैं, उस rule के base के ऊपर वो firewall decision लेता है कि कौन सा ट्रैफिक मुझे अलाउ करना चाहिए, कौन सा नहीं। Firewalls can be standalone black box, जैसे मैंने बोला, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन अ सर्वर और राउटर, आप सॉफ्टवेयर चाहो, pfSense के जो फायरवॉल है, इट कम्स इन सॉफ्टवेयर, इट कम्स इन हार्डवेयर बॉक्स। आप चाहो तो ये pfSense के ओपन सोर्स के फायरवॉल होते हैं, आप वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, फ्री का सॉफ्टवेयर है, किसी भी आप रास्पबेरी पाई है उस पर लगा दो और वो रास्पबेरी पाई जो है आपका फायरवॉल बन जाएगा। फ्री का फायरवॉल बिजनेस ग्रेड, वो बिजनेस ग्रेड फायरवॉल बन जाता है। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है। मोस्ट फायरवॉल्स विल हैव एटलीस्ट 2 नेटवर्क कनेक्शंस, वन टू द इंटरनेट और पब्लिक साइड एंड वन टू द इंटरनल नेटवर्क और प्राइवेट साइड। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। फायरवॉल चलें इधर रखते हैं हम, वी विल कॉल दैट एक्चुअली अ रेड कलर। यहाँ पे मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वी विल नीड द कनेक्टिविटी। लेट्स डू ब्लैक। इसमें मैं सिर्फ 2 बना रहा हूँ, बट इन रियलिटी 2 से ज़्यादा भी होते हैं। ओके, तो प्लीज डोंट गेट स्टक ऑन ओनली 2 पोर्ट्स। पीडीएफ में ये लोग 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी 2 ही बता रहा हूँ आपको। एक को बोलते हैं वैन, दूसरे को बोलते हैं लैन। हमने ऊपर पढ़ा था वैन जो है बेसिकली नो पब्लिक नेटवर्क होता है, पब्लिक साइट का नेटवर्क होता है। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि इंटरनल अंदरूनी नेटवर्क होता है। कनेक्शंस जो है बेसिकली, यस टू द इरेजर, वो अब इधर नहीं जाता है, वो जाता है मोडेम से इधर, और फिर राउटर यूजुअली नहीं होता है, राउटर को हम निकाल देते हैं एक्चुअली, क्योंकि यूजुअली आई मीन आप चाहे तो राउटर भी डाल सकते हैं, बट फायरवॉल इतने एडवांस हैं कि you don't need that. Sorry, इसको निकाल देते हैं। Let's see, we can call this, हम इसको बना देते हैं switch. Okay, and मोडेम से जो कनेक्शन जाता है वो जाता है वैन में, और लैन से जो कनेक्शन जाता है वो जाता है स्विच में, ऐसे जाता है। तो किसी जगह बहुत जगह मोडेम भी नहीं होता है, बट अभी मैं मोडेम की ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ। बस आप ये समझें कि आपका फायरवॉल डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट है, अभी खाली यही समझे, ठीक है। तो वैन का जो आप देख रहे हैं, वैन जो है वो इंटरनेट जो मेन पब्लिक साइट होती है वहाँ से कनेक्ट होता है, और लैन जो है वो आपके स्विच से कनेक्ट होता है, और स्विच जो है आपके सारे कंप्यूटर्स और दूसरी सारी चीज़ों से कनेक्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। So that's what they're talking about here, public side which is internet, and the internal network which is the LAN. Now some firewalls have a third network port for a second semi internal network. जैसे मैंने बोला काफ़ी फायरवॉल के अंदर एक वैन पोर्ट होता है, 2 वैन पोर्ट भी होते हैं फॉर रिडंडेंसी, वो आगे जाके बात करेंगे। 2 वैन पोर्ट्स भी होते हैं, और उसके अंदर लैन पोर्ट्स भी होते हैं। मैं क्विकली आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल। 40Gate 60F छोटा वाला है ये डिवाइस इनका, आप ये देखें। अभी कंसोल और यूएसबी को नहीं देखे, मैं आपको कभी बाद में इसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर आप देखें वैन 1 वैन 2 2 वैन के कनेक्शन दिए हुए हैं, ये रिडंडेंसी के लिए है, ठीक है। अभी हम सिर्फ वैन 1 के ऊपर ध्यान देंगे। ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये फायरवॉल है, this is a firewall slash gateway slash router, this is everything, one box has everything in it। इंटरनेट का कनेक्शन आपका लगेगा वैन 1 में, और ये जो 1 2 3 4 5 पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये है लैन पोर्ट्स, लोकल एरिया नेटवर्क, ये इंटरनल पोर्ट्स हैं। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं स्विच के अंदर, जो इसी कनेक्शन को और मल्टीपल डिवाइड करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है फायरवॉल का। ये लोग DMZ जोन के बारे में भी बात कर रहे हैं। This let's talk about. So this port is used to connect servers that can be considered both public and private, such as email servers. This intermediary network is known as DMZ, which is demilitarized zone. जो कि ये रहा पोर्ट, आपको DMZ दिख रहा है, ये पोर्ट है। इसके ऊपर स्पेसिफिक रूल्स सेट हुए हुए होते हैं।
मैं सोच रहा हूँ मैं आपको कैसे दिखाऊं इसको, बट अभी मेरे पास इसका डेमो नहीं है। बट DMZ पोर्ट जो है, जो पब्लिक फेसिंग सर्वर होते हैं आपके, वो यूजुअली DMZ के अंदर लगाते हैं कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है कि काफ़ी पोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट कैन नॉट बी यूज्ड, सो दैट्स अ DMZ पोर्ट. Firewalls can be network based in that they protect a group of computers or an entire network, or they can be host based. A host based firewall such as Windows firewall protects only the individual computer on which it's installed. ठीक है ना. अब आप विंडोज का भी फायरवॉल आता है, आप विंडोज में जाएं, विंडोज फायरवॉल टाइप करें, आप देखें विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, विंडोज 10 के अंदर सो दे कॉल इट. यहाँ से अगर मैं जाऊँगा एडवांस सेटिंग्स, एक्चुअली नो नॉट सॉरी, हाँ ये रहा, इनबाउंड रूल्स आउटबाउंड रूल्स, देख रहे हैं आप, ये सारे रूल्स है, ये फायरवॉल रूल्स है. ठीक है, ये इसको ये लोग ये इसको बोलते हैं हम होस्ट बेस्ड फायरवॉल, जो कि सिर्फ एक डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है. और जो नेटवर्क बेस्ड होता है, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, उस आपके सारे नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस आ गए ना, आपके सेल फोन, लैपटॉप, अलेक्सा, जो भी डिवाइस है वो सबको प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल. पर होस्ट बेस्ड फायरवॉल वो है जो आपके एक डिवाइस को ही प्रोटेक्ट करेगा. जैसे विंडोज के अंदर फायरवॉल होता है, खाली आपकी विंडोज की डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा. सेल फोन को प्रोटेक्ट करना हो आपको, तो ये विंडोज फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा. Now, a firewall is configured to allow only packets that pass specific security restrictions to get through. By default, most firewalls are configured as default deny, which means that all traffic is blocked unless specifically authorized by the administrator. The basic method of configuring firewall is to use an ACL, also known as access control list. ACL is a very common term. You will आपको और सुनने को मिलेगा आगे जाके. The ACL is a set of the rules. Blah, blah. Okay, मैं आपको दिखा चुका हूँ एक्चुअली, आप वापस देख लें. यहाँ पे ACL क्या है? इनबाउंड रूल्स, ये सारे ACLs हैं जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ACLs हैं. ACLs मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. इसके अंदर चेक मार्क यहाँ पे ये शो करता है कि भाई ट्रैफिक इज अलाउड. ठीक है, यहाँ पे डिनाई रूल भी होगा. सबसे बॉटम के अंदर यूजुअली डिनाई रूल होता है, बट आई गेस विंडोज फायरवॉल डजंट वर्क लाइक दैट. Let's see, where's the deny rule? Oh great, they don't have any deny rule here. That's not good. But usually ये तो host based firewall है, so it doesn't really matter. Network based firewall के अंदर deny rule सबसे लास्ट के अंदर ही होता है. उसका काम ये है कि एक लिस्ट जो होती है वो बताता है, एक ACL बेसिकली ये बोलता है कि इस ट्रैफिक को पास करो या ना करो, इस ट्रैफिक को ब्लॉक करो कि ना करो. ये इसका ACL का काम है. वो काफ़ी ग्रैन्युलर सेटिंग्स होती है फायरवॉल की. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप फायरवॉल के एक्सपर्ट बन जाएं तो जो जॉब्स आती हैं, दे आर ओनली टू वर्क ऑन फायरवॉल्स. दैट्स ऑल यू डू. You become a firewall administrator or a firewall person who manages only the firewalls. They get paid really high, and this is something really good to learn. Okay, अगर concept समझ में आ जाता है ना, then it's very easy. यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि ACLs are typically configured to block traffic by IP address, port number, domain name, which is FQDN, or some combination of all three. Mostly it's source, destination and port. IP address जो है ना, यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं जिसकी, it's source, destination, source IP, destination IP and the port number, or source IP, destination IP, or the domain name or the FQDN, fully qualified domain name. ठीक है, इंशाल्लाह इसके बारे में और बात करेंगे. मेरे पास अभी फायरवॉल का टेम्पलेट नहीं है टू शो यू. आई विल कन्फिगर दैट एंड आई विल शो दैट टू यू लेटर. ओके, विल मूव ऑन टू PoE. हमें ये 7 बजे से पहले ख़त्म करना है, सो लेट्स मूव ऑन विद दिस. Ethernet over power is also known as PoE.
Oh, my bad. Actually, no, this is Ethernet over power. This is different, okay? This is the other way around. So occasionally you will find yourself in a spot where it's not possible to run cables for a network connection, and wireless is a problem as well. For example, perhaps you are installing a device that only has a wired RJ45 port, but you cannot get a cable to it. तो इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम्स ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हम ना तो वायरलेस डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं या ना तो हम रेगुलर ईथरनेट वायर कनेक्ट रन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में. तो इन्होंने एक डिवाइस बनाया है, इसको कॉल ईथरनेट ओवर पावर. जो पावर लाइंस होती है ना, जो 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 आउटलेट होते हैं हमारे, उसके ऊपर ये उन्होंने इंटरनेट रन करने की टेक्नोलॉजी है ये पावर ओवर ईथरनेट, विच इज लुक्स लाइक दिस. इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस. एक्सक्यूज मी. ये जो एक डिवाइस है जब आप बाय करते हैं, ऐसे ही दो डिवाइस मिलते हैं आपको. और इसका मकसद क्या है, इसके पीछे जो है ना वो आउटलेट जो है ना, वो जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो लगे होते हैं, वो आप आउटलेट के अंदर लगा दें तो इस डिवाइस को पावर मिल जाती है. और जहाँ कहीं भी आपको दूसरा डिवाइस लगाना हो, वहाँ पे भी वो सेम डिवाइस लगाएं आप पावर के अंदर. तो ये बेसिकली ये डिवाइस अपने दूसरे डिवाइस से बात करता है इलेक्ट्रिकल लाइंस के ऊपर. आपको इसके ऊपर कॉपर लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है. आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड दिस, ओके, स्पेशली फॉर बिजनेसेस. आई हाईली encourage you to run proper Ethernet lines. Okay, I do not recommend this. There is usually a lot of latency depending on आपके electrical outlet के अंदर क्या load चल रहा है, microwave चल रहा है, जो भी चल रहा है, this is going to produce latency. But in worst case scenario, जहाँ पे कुछ availability है ही नहीं, for home use only you can use this. For business I would recommend never to use this. Okay, इसका concept hopefully आपको समझ आ गया हो. It's not that crazy, but मैं अब कैसे आपको, I think let me see quickly that if I can show you the picture हो तो it's very good. ठीक है ना. अब देखें, ये दो आप जब बाय करते हैं आपको दो डिवाइस मिलते हैं. ठीक है, ये डिवाइस जो है यहाँ पे जो है ये आप आउटलेट के अंदर लगा देते हैं तो उसको पावर मिल जाता है. उसके अंदर से ये एक ईथरनेट का पोर्ट होता है, वो आप लगाते हैं आपके राउटर के अंदर. ठीक है ना, राउटर के ईथरनेट केबल के अंदर. तो वो राउटर इसको वो सिग्नल पास करना शुरू कर देता है. अब ये जो है सिग्नल पास करता है इलेक्ट्रिकल वायर, जो आपकी दीवारों के अंदर वायर चल रही है उसके अंदर, इंटरनेट का कनेक्शन इसके अंदर सिग्नल को पास करता है. और वो अपने ही डिवाइस को आइडेंटिफाई करेगा, ये किसी और डिवाइस को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, बिकॉज आपको ये दो डिवाइसेस को पेयर करना पड़ता है. ओके, वंस दे पेयर हो जाती हैं तो जो इंटरनेट का कनेक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन पे आएगा. वहां से आके ये ईथरनेट जो पोर्ट है उसके अंदर आप वायर लगाएंगे और आपका कोई भी जो दूसरा डिवाइस है उसके अंदर कनेक्ट करेंगे तो उसको इंटरनेट मिल जाएगा. ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है. वी कैन मूव फॉरवर्ड बिकॉज it's very simple technology, and for business it's not, you should not be using that. Okay, so power over ethernet, PoE, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें थोड़ा सा उल्टा है. वो था ईथरनेट ओवर पावर, ये है पावर ओवर ईथरनेट. इसके अंदर मैं ज़्यादा इसमें जाता नहीं हूँ, बस आप चले हम समरी पे आ गए हैं. सो आई गेस आई कैन जस्ट गो ओवर इट. सो इफ यू कैन रन एन ईथरनेट सिग्नल ओवर पावर लाइन्स, व्हाई कैंट यू रन इलेक्ट्रिसिटी ओवर नेटवर्क केबल? एज इट टर्न्स आउट यू कैन पावर. ओके, चले मैं आपको बता ही देता हूँ PoE क्या है. PoE इज अ पावर ओवर ईथरनेट. ईथरनेट केबल जो होती है उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है उसको रन करते हैं. उसका फायदा क्या है, जैसे कि 40AP221C एक्सेस पॉइंट, ये सारे एक्सेस पॉइंट है. ठीक है, अब
ये जो एक्सेस पॉइंट है ये, और मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो पीओई पे चलती है, ये एक्सेस पॉइंट इज वन ऑफ देम। अगर इसका पोर्ट हमें दिख जाए पीछे का, देखिए नहीं बहुत छोटी है ये। ये एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। इसके पीछे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो ये सुराख दिया है, इसके अंदर हम पावर एडेप्टर लगा सकते हैं, या तो हम ये ईथरनेट का वायर लगा सकते हैं जो कि इसको इंटरनेट भी देगा और इसको पावर भी देगा। पावर ओवर ईथरनेट मेक्स लाइफ होल लॉट ईजियर। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में और स्मॉल बिजनेसेस के अंदर भी, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एट होम्स भी रन करता है। पावर ओवर ईथरनेट के लिए आपको पावर पीओई स्विच या पीओई इंजेक्टर का होना बहुत जरूरी है। वो क्या है? Let me see if I can explain that quickly. Okay, इसको हम बनाते हैं POE access point. We're gonna call it POE AP. अब हमारे पास है इसको हम बोल देते हैं राउटर, गेटवे, व्हाटएवर, राइट, इट्स अ राउटर। अब हमें चाहिए वायरलेस सिग्नल। ये एक्सेस पॉइंट का काम क्या था? वायरलेस सिग्नल देने का, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहें इसको हमें टर्न ऑन तो करना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे? तो हम चाहें ये दीवार के अंदर एक आउटलेट लगा हुआ है, इसको हम कह देते हैं आउटलेट, एक्चुअली पावर आउटलेट। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम पावर आउटलेट से एक वायर दें तो इस पीओई के अंदर पावर आएगी ताकि वो ऑन हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं आएंगे। मीनिंग कि अगर उसको आगे जाके ये इंटरनेट सिग्नल्स फेंकने हो, ये इंटरनेट सिग्नल्स वो नहीं फेंकेगा, क्योंकि अभी तक तो राउटर ने उसको कनेक्ट ही नहीं किया। जब तक से राउटर से कनेक्ट नहीं होगा वो आगे इंटरनेट नहीं देगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहते हैं तो ये पावर आउटलेट जो है उसको कनेक्ट करके पावर दे दी, और एक दूसरा वायर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं राउटर से पीओई में, तो इसको इंटरनेट मिल जाएगा। तो दो वायर आप दोगे उसको तो वो वायरलेस सिग्नल फेंकना शुरू कर देगा। पर फिर पीओई का क्या फायदा? पीओई का ये फायदा है कि अगर आपका जो राउटर है इज ए POE supporting excuse me, अगर आपका जो राउटर है वो POE सपोर्टिंग राउटर है या POE सपोर्टिंग स्विच है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कनेक्ट एक ईथरनेट केबल, बस ये कनेक्ट कर दी, आपके एक्सेस पॉइंट के अंदर पावर भी आ गई और इंटरनेट भी आ गया एक ही उसके अंदर। अब ये आपका एक्सेस पॉइंट वायरलेस सिग्नल ड्रॉप करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई ये इट्स वेरी ईज ऑफ यूज, इट हेल्प्स आउट अ लॉट। नाउ सर्टेन केसेस के अंदर हमें यूज करना होता है POE एक्सेस पॉइंट, लेकिन हमारे पास POE सपोर्टिंग राउटर नहीं होता है। हम चाहते हैं कि भाई हम POE एक्सेस पॉइंट यूज करें और एक ही वायर रन करें, लेकिन हमारे पास POE राउटर नहीं है, तो अब क्या करें? ठीक है, कोई मसला नहीं। और आप नहीं चाहते कि आप अलग से एक पावर की लाइन ये POE के पास रन करें, बिकॉज यू नो इट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो उसके अंदर एक आता है डिवाइस, इट्स कॉल्ड लेट्स कॉल इट POE इंजेक्टर, ठीक है। POE इंजेक्टर का काम ये है कि जहां पे भी राउटर लगा हुआ है आपका, उसका ही नजदीक के अंदर होपफुली एक, ये पावर आउटलेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, विच इज फाइन, बट इट्स अ पावर आउटलेट, राइट।
ये गेट राउटर के नज़दीक में ही कहीं पे अगर पावर आउटलेट लगा हुआ है तो आप ये जो पावर इंजेक्टर है, पीओई इंजेक्टर है, उसको पावर आउटलेट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो उसको दे देगा पीओई इंजेक्टर को पावर। और एक दूसरा जो वायर है, ईथरनेट वायर जाएगा राउटर से पीओई इंजेक्टर में, जो कि उसका इनपुट का वायर होगा। और फिर यहां से एक सिंगल ईथरनेट केबल जाएगा पीओई एपी में। तो ये यूजुअली जो होता है ये लॉन्ग रन होता है, क्योंकि हम एक्सेस पॉइंट्स है ना राउटर के नज़दीक वैसे भी नहीं लगाते हैं, ये एक्सेस पॉइंट दूर दूर लगे हुए होते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम पावर की लाइन अलग से रन करें और फिर ईथरनेट लाइन रन करें। तो उस सिनेरियो के अंदर आप पीओई इंजेक्टर यूज कर सकते हैं। पीओई इंजेक्टर कैसे दिखते हैं वो भी आप देख लें। दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। जैसे मैंने बताया, यहाँ से ये जो है डीसी, उसके अंदर आप डाल दें अडेप्टर और नज़दीक के किसी भी आउटलेट में कनेक्ट कर दें, तो इस डिवाइस को पावर मिल जाती है। और यहाँ पे लैन के अंदर आप डालेंगे राउटर से, जो आपका ईथरनेट का केबल आ रहा है वो इधर डालेंगे, अस्यूमिंग कि राउटर आपका बहुत नज़दीक के अंदर ही है। तो राउटर से लैन के अंदर डाल दिया, राउटर की किसी भी लैन 1 2 3 4 जो भी हो, लैन पोर्ट के अंदर से निकाल के वायर एक जाएगा और इस लैन के अंदर आएगा। तो वो इस डिवाइस के अंदर पैकेट्स आना शुरू हो जाएंगे, और जो पीओई वाला वायर है वो यहाँ से लगाएंगे और वो आ जाएगा आपका एक्सेस पॉइंट में। तो अब उस एक्सेस पॉइंट को पावर भी मिल जाएगी और उसी एक्सेस पॉइंट को इंटरनेट भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सस्ता सोल्यूशन हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास पीओई वाले स्विच या राउटर या फायरवॉल नहीं होते, ठीक है। घर के अंदर काफ़ी यूज होता है ये भी। For offices, I mean, I would really recommend getting a proper PoE switch. So, हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया है? We covered a broad variety of networking topics. This chapter also contained everything that you need to get ready for the networking questions. जितने भी networking questions हैं, hopefully इस जो एग्जाम के अंदर आएंगे वो इस चैप्टर के अंदर हमने कवर किए हैं, और डिटेल के अंदर चैप्टर 8 के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे later on. At the same time, जो एग्जाम A+ का एग्जाम है, you know, it barely scratches the surface of other things. जैसे मैंने बोला चैप्टर 8 के अंदर हम उसको और कवर करेंगे. Now I want to do quickly ये निक के बारे में हमने लर्न किया, STP UTP, फाइबर ऑप्टिक के बारे में लर्न किया, Cat 5e, Cat 6 and switches and all the rest of the PoE injector and PoE ईथरनेट ओवर पावर हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया आज की तारीख में, ठीक है। एग्जाम एसेंशियल्स हैं, लेट्स सी इफ दे हैव रिव्यू क्वेश्चंस रियल क्विक। वी विल गो ओवर द रिव्यू क्वेश्चंस बिकॉज अपने पास थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, इन्होंने आंसर्स भी दिए हुए अपेंडिक्स ए के अंदर। डैश इज इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। कौन सी केबल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी RF फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस से इम्यून है? हमें पता है मोस्ट ये सारे जो ये कोएक्सियल और ये ट्विस्टेड केबल सब कॉपर रन करते हैं, they are all not immune to it. Only fiber optic runs light, so we know that they are immune to electromagnetic and radio frequency. Now, which IEEE 802 standard defines a bus topology using coaxial based cable and is able to transmit at 10 megabits? हमने ये section pass किया था. I'm not sure about this, but this section, I mean, if you really want to confirm, it should be up there. I don't want to go over that because we do not use 10 megabits per second sessions anymore. Which OSI layer signals all clear by making sure that the data segments are error free? Application layer, session layer, transport layer, network layer. ठीक है ना? कौन सा लेयर है वो OSI लेयर के अंदर जो मेक श्योर करता है कि जो ट्रैफिक जा रहा है it's segmented and it's error free, meaning कि वो एग्जामिन करता है
ठीक है ना. That's a network layer. Network layer के अंदर ये होता है, which is a layer 3. Dash is the type of media access method used by NICs that listen to or sense the cable to check for traffic and send only when they hear that no one else is transmitting. CSMA, CD, CA or demand priority or token passing. इसके अंदर let's see quickly. मुझे आई एम नॉट श्योर कि हमने ये टॉपिक को स्किप किया था कि क्या. हाँ, तो ये जो है बेसिकली CSMACD which is A, answer B. So carrier sense multiple access जो है with collision detection, ये CD का मतलब है collision detection, specifies that the NIC pause before transmitting a packet to ensure that the line is not being used. So जो CSMA/CD है, CD means collision detection. This is the media जो मेक श्योर करती है कि केबल जो है it checks before transmitting the data basically. So the option number B. What model is used to provide a common way to describe network protocols? हमें पता है इतनी देर से हम OSI मॉडल ही कर रहे हैं. OSI मॉडल ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल जो है is basically used to provide common way to describe network protocols. ठीक है. Question number 6 talks about a physical star topology consists of several workstations that branch off a central device called a hub. A star topology जो थी, or a hub or a switch, you know, basically it's a center of a star topology. अगर आपको याद हो star topology हमने ऊपर देखी थी, which is the center of a hub, and a switch is the center of a star topology. And a NIC is a network card which communicates, which each of the computers must have to be on a network for a hub and a switch to be able to communicate with each other. So in this case, hub is the best option. Of all the network cabling options, Dash offers the longest possible segment length. इस नेट केबलिंग के अंदर से सबसे अच्छी बेसिकली केबल कौन सी है जो डिस्टेंस के अंदर सबसे अच्छी है? हमें पता है फाइबर ऑप्टिक इज द ओनली वन एज ऑफ राइट नाउ. आगे जाके शायद दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आई डोंट नो. अभी के ज़माने में फाइबर ऑप्टिक इज द मोस्ट फास्टेस्ट in terms of distance and in terms of speed as well. Okay. What devices transfer packets across multiple networks and use tables to store network addresses to determine the best destination? Bridges, hubs and switches. They are not a smart device. जो जॉब ये लोग यहाँ पे परफॉर्म करने की बोल रहे हैं, it requires the device to be smarter because routers have proper routes in it. It knows exactly where to send the traffic. So the router A is the correct option for number 8. In which network design do users access resources from other workstations rather than from a central location? इसमें client server जो है वो भी नहीं है. Star shares the connection from other. Ring is not. Peer-to-peer is the only one which uses access resources from workstation rather than from a central location. Peer-to-peer is literally connected one device to the other, tied together. That's it. वो central location से कुछ pull नहीं कर सकता. Which of the following wireless communication standard is often described in terms of wireless personal area network, which is also called as PAN? Bluetooth is the only one.
because Bluetooth जो है network are often called wireless personal area network. These are small network which only works when you are within the certain amount of distance. ठीक है? Which of the following statements are not associated with a star network? Choose all that apply. In this case, जो star network है is not I would say a B. Which ones? A single cable break can cause complete network disruption. Yes, a star network does do that. C, if it uses a single backbone computer to connect all network devices. Yes, that also falls, that does not fall under star network. And D, it uses a dual ring configuration, so that is also does not fall under the star networks. So the answer to this would be A, C, and D. If you are going to run a network cable in the space above the drop ceiling in your office, which type of cable should you use? In this case, it would be A, the plenum cable, for areas where a cable must be fire retardant. अगर आपको याद हो, हमने पहले इसकी बात की थी. Plenum, उसके ऊपर जो coating की होती है, it's fire retardant, and such as for the drops in ceilings and behind the walls, you must use fire rated excuse me, cables. So A is the right answer. Which of the following connector types is an MFF connector? D, which is a local connector. Local connector जो है वो is a mini form of MFF, fiber optic connector, जो कि Lucent Technologies ने इजाद किया था. सही है. For what Ethernet specifications would you be running if you needed to make a connection of 10 Gbps over a distance of 5 kilometers? 5 kilometers तक जाना हो 10 GB की स्पीड पे, तो आप कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे? In this case, A, if you need to make a connection that is 5 kilometers or longer, then you are limited to fiber optic cable which only uses SMF. अगर आपको याद हो, single mode fiber, जो कि सिंगल लाइट को ट्रांसमिट करती है केबल के अंदर, उसकी दीवारों के साथ उसके बाउंसिंग कम नहीं होती है basically. That's the reason why we can go up to, I think, 40 kilometers. So in this case, the 10G base ER, which is called extended range, is the right cable. Okay. You have been asked to configure a full mesh network with 7 computers. How many connections will this require? This usually requires you to go through a formula, but in a mesh network, the number of connections is determined the formula, as I said. Parentheses x times parentheses x minus 1, close parentheses and close parentheses divided by 2. And that would amount to about 21 connections. When you put that number in, it will come down to 21 connections. Which tool is used by technicians to connect the RJ45 connector to an N cable? ये इसकी picture दिखाई थी मैंने आपको. It's a crimping tool basically, which is the answer is B. What type of device will block unwanted traffic from your network using a set of rules called an ACL? अभी हमने इसके बारे में बात की थी. Firewall जो है वो network base के ऊपर आपके network को protect करता है based on the rules. Rules are also called ACL. Number 18. What type of coaxial cable is recommended for digital television cable signals? Which is the two RG standards used for cable television are RG6 and RG59. Of the two, RG6 is better and can handle digital transmission. So RG59 is for analog signals only, whereas RG8 is thicknet coax, which you can use it for a little bit more better signals. So in this case, it's a thicknet coaxial cable and thinnet coaxial cable. So in this case, RG6 is the cable for
for digital signals for television. Which of the following devices work at layer 2 of the OSI model? Layer 2. इसके अंदर we know that bridge and switch, they work on layer 2. Hub are dumb devices, so they don't. Bridges and switches are layer 2 devices. Hubs work at layer 1, as I said. They don't have they don't have mind of their own. So in this case, C and D are the correct answer. Routers are layer 3, so they don't work on layer 3. They don't work on layer 2. Router works on layer 3. Bridge and switch work on layer 2. Hub works on layer 1. Okay. Transmitting at 10 gigs, how far can signals on MMF can travel? If I remember this right, I believe it was 550 meters theoretically. So in that case, I think B is the right answer. Performance based questions, we just finished that. So okay, so यहाँ पे अपना chapter number 6 finish होता है. Chapter number 6 जो था वो हमारा networking fundamentals का था chapter. यहाँ पे हमने chapter 6 के अंदर क्या क्या cover किया? हमने cover किया है fiber, twisted pair, coaxial cable. हमने उनकी types, different types को cover किया है. We also compared and contrast internet connection types, network types, and their features. We also compared and contrast network architecture, devices, their functions, and their features, which includes hub, switch, access wall, fire, बहुत सारी चीजें इसी के अंदर आ गई. And that is where अपना chapter number 6 is ending. Inshallah, next class के अंदर we will continue to chapter number 7. जहाँ पे we will cover mostly which will cover explain properties and characteristics of TCP and IP, explain common TCP and UDP ports protocols. ये low level ports है, हम इसके बारे में बात करेंगे. मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में. And that's it. So I think chapter number 7 इतना बड़ा नहीं है. So इंशाल्लाह हमारा जो next session होगा वो होगा Saturday को. So we should be able to cover 2 chapters inshallah. Let's see chapter 7 and 8. मैं उसकी information online YouTube पे post कर दूंगा with the dates and the new live link. अगर आपके कोई भी questions हो आप please chat में अगर submit करें. अगर chat में submit नहीं कर सकते हैं तो आप comments के अंदर डाल सकते हैं. इंशाल्लाह I will do my best to reply to those questions as well. तब तक लिए अल्लाह हाफिज. Hopefully you enjoyed the video. कोई भी comments हो, anything you want me to change, anything अगर आप चाहते हो कि मैं कोई different तरीके से आपको explain करूं वो भी आप मुझे please बताएं. I am open to any critical comments, critiques, anything you have. I'm open to that. Anything which will help you in better me explaining you eventually. So अगर आपके पास कोई भी additional ideas हो, please provide that to me. So I will work on that. तब तक के लिए I'm gonna end my session here. Inshallah we will come back and continue the rest of the chapters.